Okay. I was saying, welcome to the PID webinar. This is Nadeem Ul Haq. Let's begin our evening's proceedings. Today we have a very special webinar for you. Performance agreements have been the talk of the town for the last so many years. In fact, 200 years ago, it was talked that the government must perform for the people. That is a social contract, and that we are writing a social contract. But in Pakistan, unfortunately, nobody recognizes that. But now we are very fortunate to hear that the Prime Minister is talking about it. But does it mean anything? The Prime Minister also talked about reform. Yes, a lot of talk, but nothing much has happened. So let's dive into it and check out what performance agreements are. We are very fortunate. We've got two gentlemen from the Prime Minister's office. They have been, what should I say? They have been in the Prime Minister's office for the last 3 years. They left their lucrative jobs in McKinsey's to serve the country. So we're going to check out how they serve the country. इन्होंने बड़ी मेहनत की है, 3 साल से प्राइम मिनिस्टर के दफ्तर में बैठे रहे हैं, बड़े पावरफुल लोग हैं. तो आज इनको हमने रिक्वेस्ट की कि हमारे साथ आके बात करें, हमें बताएं, क्योंकि बड़ा मीडिया में आ रहा है, all over the place we are hearing the performance agreements have been signed, and we've been trying to find out what these performance agreements are and who is signing these performance agreements. Apparently, they're telling me it'll lead to a lot better governance. So, okay, we're waiting to see if it'll lead to a lot better governance. So we want to see what change in governance is going to happen. So I urge all my economist friends, all Pakistani social scientists, and quote, development practitioners, the donors, who I hope are here. Although development practitioners कहते हैं कि हमने पाकिस्तान के बारे में कुछ नहीं सुनना, हम बता देंगे. तो खैर ये भी प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस को पता नहीं है, पर हम प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस को बता दें. तो जी, वेलकम मिस्टर बिलाल राव, member of the PM office delivery unit, and welcome Saad Hayat Taman, also a member of the PM office delivery unit. The PM office delivery unit has been working very hard to develop these performance agreements. And Bilal and Saad are going to tell us about them. Then you can ask them your questions and they can answer them. So let's see what the government is offering us. The citizens of Pakistan, do these performance agreements mean anything for you and me or not? So please, Bilal Saab, take over. थैंक यू नदीम उल हक साहब. मेरे ख्याल में सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा इसकी इम्पोर्टेंस जो आप बता चुके हुए हैं उसके ऊपर बताना चाहूँगा. देन आई विल आस्क साद हयात तमन टू एक्सप्लेन द हिस्ट्री के कब से शुरू हुआ और कैसे यहाँ तक पहुँचे. तो एक तो इम्पोर्टेंस इनके परफॉर्मेंस एग्रीमेंट की इसलिए ज़रूरी है और ये क्यों हो रहे हैं, क्योंकि आप समझें कि ये एनुअल प्लान्स जो हैं मिनिस्ट्रीज के वो पहली दफ़ा बनना शुरू हुए हैं और ये फॉरवर्ड लुकिंग प्लान्स पहली दफ़ा बन रहे हैं जिसके अंदर तमाम मिनिस्ट्रीज जो हैं फेडरल गवर्नमेंट की वो प्राइम मिनिस्टर से प्रॉमिस कर रही हैं कि जी हम ये चीज़ें XYZ चीज़ें जो हैं हम डिलीवर करेंगे, उनके एग्जैक्ट टारगेट्स को बता रही हैं और उसके ऊपर क्वार्टरली रिव्यू के मुताबिक उनकी जो है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट भी हो रही है, अकाउंटेबिलिटी भी हो रही है. तो ये तो इसका एक मोटा सा इम्पोर्टेंस है. मैं साथ से कहना चाहूंगा कि वो हिस्ट्री के बारे में जरा बता सकें ताकि देन वी कैन मूव फॉरवर्ड. Thank you, Bilal. Thank you, Nadeem Saab, and thank you everyone for giving us your listening here. Bilal, to add to your introduction, basically our performance agreements, this started in 2019 जब कैबिनेट ने इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म सेल की एक समरी थी परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर, वो पेश हुई and then it got passed, and the performance agreements was actually the core of this performance management system. This was basically the baseline which had to be created कि आपकी performance किस चीज पे assess होगी. This baseline wasn't easy, frankly. It wasn't, there was no cookie cutter approach कि हमें पता हो कि जी हमने ये 4 चीजें करनी है तो ये आगे हो जाएगा. So what the Prime Minister directed us to do in particular, क्योंकि this was basically handed over to the establishment division to implement,
So we selected 11 high impact ministries out of them all, and we did a pilot test run just to learn how this process can impact or be beneficial for the government. These 11 ministries, we defined these guidelines. We were very clear that this is something that the ministries have to do themselves. This isn't a top-down push. कि आपने बता दिया कि जी आपने ये 4 चीजें करनी है. Ministries were given the liberty. This was a fairly democratic process where ministries brought to us what they thought they should do in the following years. In that process, we realized that when the ministries were bringing in, we needed to give them a very well-structured feedback, and this feedback should come from people who have an overarching view of the government. Hence, Prime Minister के कहने पे and उनसे मुशावरत के बाद a peer review committee was established. In this peer review committee, it was headed by the Deputy Chairman Planning, because the Planning Commission has full oversight of the government and they understand कि अगले साल की budgetary spending किस तरफ जा रही है, policies कैसी हैं. With the Deputy Chairman Planning, there was Secretary Cabinet, Secretary Finance, Secretary Planning, Secretary Establishment. And these 4 divisions were made part of the peer review committee because you would notice people who have or even who have less interaction with the government, these 4 divisions are the back-end operations of the government. आपकी जाने ना जाने कोई ना कोई पेपर इनके पास जाता है अप्रूवल के लिए, हर पॉलिसी इनके पास जाती है, एस्टैब्लिशमेंट के पास HR के अफेयर्स जाते हैं, कैबिनेट के पास पॉलिसी या डायरेक्टिव लेवल अफेयर्स जाते हैं, फाइनेंस के पास बजट लेवल और इवन पॉलिसी लेवल के अफेयर्स जाते हैं. एंड जो आपकी प्लानिंग है वो तो नेचुरली सिंस इट्स क्रॉस कटिंग, तो उसके पास आप व्हेन यू आर प्लानिंग फॉर द नेक्स्ट ईयर यू गो देयर. सो दिस I spent a little bit more time on this committee because this committee is sort of the driving force behind the performance agreements. So once we did a pilot with these 11 ministries, it took us 6 months actually to prepare the performance agreement for financial year 2019-2020. इसमें we finalized the template. We understood कि ये बनाने किस तरह हैं. अगर आपने पूरी गवर्नमेंट के बनाने हैं तो what all has to be done. In particular, the most important thing was that the ministries decide what they want to do. Where we come in, we basically help them improve their targets, incubate new thought, and C, also help them understand that how this tool can help them. Now, when I say can help them, they have this tool in essence ये एक board level tool है जहाँ पे you have the chairman of the board, you have board of directors, each board member has a particular speciality. Very similar, our cabinet, the federal cabinet is the board of the Pakistan government. Similarly, in the ministry, the minister's office and the secretary's office is the board of that ministry. So they are managing, they are basically they are providing the oversight, right? So this tool was theirs. This tool is for them to assess whether the ministry is doing what it planned to do, B, whether they are doing it on time. Because when we designed these agreements, the template specifically asked कि अगर आपने ये initiative करना है, इस initiative को करने के लिए आपने हर quarter के end तक कौन से steps मुकम्मल कर लेने हैं. Now, this step can either be a process-oriented task, it can be a spending-oriented task, but it has to connect to first the outcome of what, because the initiative is more like an outcome. The initiative is for example, the establishment of a dam, the establishment or the development or the approval of a policy for XYZ reason. Now, when these targets were established, to this, the board basically uses this agreement as a tool to improve their own performance. Naturally, this is something which was new. Naturally, this is something which our
Pakistan federal government's governance wasn't used to. So it took time for them to understand, realize, and when they realized the value of this. So in June 2020, हम ये सारा का सारा फेडरल कैबिनेट को लेके गए, हमने जाके अपनी learnings बताई, and you know, we told them that this is something जिससे ministries, you know, every important stakeholder जो के decision maker है can benefit from it, both the process and the content in it. Hence, the Prime Minister gave us the directive कि आप इसको पूरी federal government के लिए करें. So Bilal, myself, and the team then sort of initiated the process in June 2020 to develop the performance agreements for the entire government. Isme, there are all 41 divisions were there. Also in the most important thing that happened was that we digitized this. And by digitization, we meant that we developed this system, because naturally, you know, you have to actually assess and understand कि एक चीज हुई है नहीं हुई है, कहाँ पे चीज फंसी हुई है, उसको analyze करने के लिए you needed the data to be in a specific format. So we have this portal which ministries interacted with. They were using the portal to update their status of the targets, identify कि हमारी ये चीज इस वजह से नहीं हुई. And naturally, when ये सब 40 ministries के 40 divisions के जब ये बन गए, तो the PRC then was played another role. It wasn't just कि वो ministries के agreements बना रहे थे, वो ministries को facilitate कर रहे थे, because naturally आप, you know, when we're any reform, you know, you're trying to fill in a particular gap. One gap at the federal level is, and I think it's across the board, across all countries, कि there isn't facilitation के लिए, there aren't many platforms. It's either, you know, it's either planning, it's either tracking, it's either progress, but then you need a platform where जहाँ पे you can present your problem, and then the platform is, or the forum is supports you in solving it. This, you know, our model was evolving because we understood कि Bangladesh के अंदर, New Zealand के अंदर, UK में, as Nadeem Saab pointed out, different मुल्कों के अंदर ये reform हुआ था और चल रहा है. उसकी different शक्लें हैं. जिस तरह UK के अंदर there are service level agreements. Now a service level agreement is where आपने कोई service provide करनी to the citizens, so you chalk out the SOPs, you turn around time कि जी अगर आपने passport देना है तो you have to give it in 20 days, for example. Bangladesh is very similar, where they were using this tool for planning, as Bilal had pointed out. R was more like a hybrid, where we are using it for planning, we are using it to improve processes, we are using it to also help overcome dependencies. Now, in the last year, we actually realized this was something that we were doing. हम सीख भी रहे थे, we were learning by doing, and we also realized कि आहिस्ता आहिस्ता ये evolve हो रहा है. And the basic aim of this particular exercise is कि काम बेहतर हो, delivery बेहतर हो, और delivery track पे रहे. Delivery की कोई एक work plan ministries में एक forward looking, as Bilal pointed out, एक forward looking exercise की capacity पैदा हो. And then in the last year, multiple accounts, for example, एक ministry थी, I'm sorry I can't exactly state कि वो कौन थे, but they came and they said कि जी हमारे NOCs फंसे हुए हैं. It was a big task, and that NOC was from another ministry, क्योंकि जब तक वो देंगे नहीं वो काम शुरू नहीं होता. So what we did was कि, you know, this was something which data के अंदर हमें नजर आ गया था कि जी a ministry has not completed these targets because of this. So we wrote to that ministry, because उस ministry का भी हमने review करना था. And in that review, we told them कि जी देखें आपने तो ये 10 चीजें आपने कही थी आप करेंगे, आपने कर ली, but हमें ये पता है कि मिनिस्ट्री ए ने भी अपनी चीज करनी थी, और वो तब होती कि आप उनको ये चीज देते. So when we communicated this to them, to the ministry जो जिन्होंने काम करना था, they were not, they said कि जी हमें तो वो 5 साल पहले
उसको कर दिया था, but it turned out कि वो किसी फाइल के नीचे पड़ा हुआ था, and you know it's something जो कि it's a problem we all of us face, both in the government, outside the government, all stakeholders, and it's a very natural problem because हम the process is not digitized, right, and जितना जो फाइल वाला जो issue है वो हमारा रहता है, so we use this process. That ministry gave the NOC, or the other ministry was able to fulfill their targets. So we realized that the performance agreements, in addition to evaluation and planning, this was the core value add which was being brought in, where ministries were getting into the practice of not just inward looking, वो थोड़ा आगे पीछे भी देखते थे कि हमने दूसरों के काम किसके करने हैं, कैबिनेट हो गया, स्टैब होगी, फाइनेंस हो गए. So lo and behold, this exercise was successful. Now, since developing these agreements was a very big task, हम as a team, हम पहले ministry को we used to reach out, ministry would give their first take, we would give them basic feedback. उसमें थोड़ी बहुत ही hygiene होती है, थोड़ा बहुत, you know, one very interesting thing that we did was that we told them that write it in past tense. Like your milestone, the quarterly target has to be in a past tense. That it shouldn't be that you will do this, it should be this thing completed, right? So even those basic things actually had some behavioral impact. Now, based on that, क्योंकि ये agreement बनाते बनाते हमें 4 से 5 महीने लग जाते थे, there's a lot of back and forth, PRC के, you know, I mean, I think cumulatively it's a few thousand man hours. And it's a, you know, where this is asking for a lot, given the government की और कितनी responsibilities होती हैं. So for now, for this year, actually, we decided to do this for a 2-year thing. It's till the end of the government's tenure. So this time, it was actually even more difficult. Ministries ने अपने 8 quarters के अगले targets बनाए. उसमें we also realized that there are few, but there are initiatives जिनके 8 quarters के targets नहीं बनते थे, but ministries committed कि by the 3rd quarter they'll figure out what they'll do on that particular issue in the next remaining 5 quarters. So now we've come to this point where for all 40 divisions and also Board of Investment, so 41 now, we have 2-year plans. These plans are first have high impact and important initiatives that they have to do. 2, they are broken down into quarterly steps, and there is each step doesn't have one. Each quarter doesn't have one step. A quarter can have multiple things, right? So there are proper work plans. There are teams within the ministries जो इसको follow up कर रही हैं. उनकी एक routine बन गई हुई है where every quarter they know that they have to update this. This is something that the Prime Minister views. The Prime Minister, Bilal, I'd request कि आप इस पे जरूर, you know, brush on the Prime Minister part. But so this is a very, I'd say, important pack of information where there are work plans for all 41 divisions. You know, I think there are around 1,300 initiatives, over 10,000 particular steps, and I think a few thousand dependencies which we have already recorded. So this allow us to predict bottlenecks also. Bilal, over to you. जी, थैंक यू साद ने एक तो हमें थोड़ी सी हिस्ट्री बता दी है कि हिस्ट्री कैसे 2019 से शुरू हो चुके हुए हैं. उस साल 2019-2020 में ये परफॉर्मेंस एग्रीमेंट 11 मिनिस्ट्रीज के अंदर अप्लाई हुए, उसके अंदर क्वार्टरली रिव्यूज भी हुए, उनका 1 साल का प्लान भी बना. उसके बाद दूसरी चीज 2020-2021 के लिए तमाम मिनिस्ट्रीज के साथ हुआ, उनसे क्वार्टरली रिव्यूज हुआ जिसके अंदर पीआरसी ने उनको रिव्यू किया, उनको बेहतर किया, जहां पर डिपेंडेंसीज थी या मसले मसाइल थे उनको रिजॉल्व किया. प्राइम मिनिस्टर भी उनको देखते रहे और साथ साथ मिनिस्ट्रीज के साथ मिलकर उनको काम किया. और अब हम इस जगह पर पहुंच चुके हुए हैं 2 साल के बाद, जितना ज्यादा काम हो चुका हुआ है, 2 साल से ये चल रहे हैं. अब अगले 2 साल का एक तरह से ये जो एजेंडा है इस हुकूमत का या गवर्नमेंट का, वो 2 साल का
बन चुका हुआ है। ये परफॉर्मेंस एग्रीमेंट का इंपॉर्टेंस इसलिए भी जरूरी है कि हमारी, अगर हम मिनिस्ट्रीज के साथ काम करें या सेक्रेटरीज के साथ काम करें या सिविल ब्यूरोक्रेसी के साथ आप काम करें, तो डे टू डे वो काम कर रहे होते हैं, फायर फाइटिंग चल रही होती है, जो काम आ रहा होता है उसको कर रहे होते हैं। तो ये एक तरह का जो परफॉर्मेंस एग्रीमेंट थे, उन्होंने उनको प्लानिंग करने पे मजबूर किया। उन्होंने बताया कि जी आप हमें बताएं कि आप रिफॉर्म के अंदर क्या करना चाहते हैं, पीएसडीपी के प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए क्या कर रहे हैं, नॉन पीएसडीपी के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए फॉर एग्जांपल क्या कर रहे हैं, सर्विस डिलीवरी के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं। इन तमाम चीजों को उनके अंदर हम लोगों ने मजबूर किया मिनिस्ट्रीज को कि वो अगले 2 साल के लिए सोचें कि उन्होंने करना क्या है। तो एक तो चीज ये होगी कि फायर फाइटिंग के बजाय उनको प्लानिंग करने पे मजबूर किया। दूसरा, डिपेंडिंग ऑन मिनिस्ट्री, कुछ मिनिस्ट्रीज हैं जिसके अंदर प्रोसेस ड्रिवन चीजें होती हैं, फॉर एग्जांपल प्लानिंग है, इसके अलावा फाइनेंस है, और कुछ मिनिस्ट्रीज थी जो कि सर्विस डिलीवरी से रिलेटेड थी, फॉर एग्जांपल एफबीआर है या इंटीरियर के अंदर सीडीए है, इस तरह और भी कुछ मिनिस्ट्रीज थी। तो उसके अंदर एक तो हमने तमाम मिनिस्ट्रीज के साथ कहा कि आपके प्रोसेस भी टारगेट्स के अंदर आने चाहिए। साथ साथ उन्होंने जो एक पहली दफा एक्टिविटी की थी, वो हमने कोशिश की कि प्रोसेस के साथ साथ आउटकम ओरिएंटेड भी चीजें हों। मसलन जहां पर भी इनिशिएटिव होता था तो हमारा और एज अ मिनिस्ट्री का भी अपने आप से ये सवाल होता था कि इससे सिटीजन्स का क्या फायदा होगा, इससे क्या चीज इंप्रूव होगी, क्या टाइम डिले कम होगा, क्या ब्यूरोक्रेटिक जो टेप है वो कम होगी कि नहीं होगी। तो एक तो चीज ये होना शुरू होगी फेडरल गवर्नमेंट के अंदर, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट थी। इसके अलावा हम लोगों ने इसको, मैं थोड़ा सा ये भी बताना चाहूंगा कि इसको मिनिस्ट्रीज ने कैसे हेल्प किया, मिनिस्ट्रीज को इसने, और कैसे ये अब पब्लिक हो चुका हुआ है। फॉर एग्जांपल पहले 2 साल हमने इसको इतना ज्यादा पब्लिक नहीं किया था, लेकिन इस दफा हमने, अगर आप देखेंगे तो ये डिलीवरिंग रिजल्ट की पूरी किताब है जो कि पब्लिक है डॉक्यूमेंट। इसके अंदर तमाम मिनिस्ट्रीज और डिवीजन के जो अगले 2 साल के हैं कि क्या चीजें उन्होंने 2020-21 तक कंप्लीट करनी है, और 21-22 तक और 22-23 तक उसके अंदर ऑन गोइंग इनिशिएटिव। आपको एक पता चल सकता है कि मिनिस्ट्रीज ये कमिट कर रही हैं पब्लिक से कि हम 1 साल के अंदर अंदर ये चीजें करेंगे। उसके साथ साथ प्राइम मिनिस्टर और पीआरसी रिव्यू कमेटी इसको हर क्वार्टर में देखेंगे भी, और साथ साथ उनकी प्रोग्रेस जो है हम आप लोगों के साथ शेयर भी करेंगे। तो ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज पाकिस्तान गवर्नमेंट में हुई है जो कि इससे पहले नहीं हुई। उससे पहले हमें नहीं पता चलता था कि एक मिनिस्ट्री क्या कर रही है, क्या इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स हैं, क्या इंपॉर्टेंट चीजें वो सिटीजन के लिए लेकर आ रही है। उस इसके अंदर काफी चीजें हैं जिसके अंदर इंप्रूवमेंट हो सकती है, और वो साथ साथ इंप्रूवमेंट होती भी रहती है। तो पहली चीज तो ये है। दूसरी चीज मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा कि इसका फायदा किस तरह हुआ। एक तो पहले तो फायदा ये हुआ कि काफी ज्यादा इनिशिएटिव जो पीछे बैक बर्नर पे रहते थे, कहीं पता नहीं चलता था, वो यहाँ पर आना शुरू हो गए। मसलन मैं आपसे एक डैम का बताना चाहूंगा, जैसे दासू डैम था, उसकी जो जमीन की एक्विजिशन थी वो फंसी हुई थी, वो कहीं नीचे फंसी हुई थी। वो जब से ये परफॉर्मेंस एग्रीमेंट्स आए तो वो लैंड एक्विजिशन का इनिशिएटिव दासू डैम से रिलेटेड वो इसके अंदर आ गया। क्वार्टरली उन्होंने टारगेट्स दिए कि कहाँ पर कितनी जमीन वो एक्वायर करेंगे हर क्वार्टर में, और साथ साथ उन्होंने डिपेंडेंसी भी बता दी कि जी केपी गवर्नमेंट से हमें ये चीज चाहिए। उस चीज का फायदा ये हुआ, और इसी तरह कैबिनेट से जो काम चाहिए था, जो फाइनेंस से काम चाहिए था, उसका फायदा ये हुआ कि जब पीआरसी रिव्यू के अंदर आते थे तो वाटर मिनिस्ट्री को फायदा हो जाता था इस चीज का, कि वो जो पहले खत लिखते थे, फिर 2 महीने वेट करते थे या 1 महीने वेट करते थे, वो प्राइम मिनिस्टर को भी पता होता कि ये मेरे लिए प्रायोरिटी है, इसलिए मिनिस्ट्री को भी पता होता था कि हमारे लिए प्रायोरिटी है ये। और फिर वो जो हर्डल्स और इश्यूज जो थे वो प्रॉब्लम सॉल्व होना शुरू हुए और रिजॉल्व होना शुरू हुए। और इसी की वजह से अब हम कह सकते हैं कि जो दासू की लैंड एक्विजिशन का मसला था वो रिजॉल्व हो चुका हुआ है, तमाम की तमाम लैंड एक्वायर हो चुकी हुई है। इसी तरह दूसरी चीज मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि इसका और क्या फायदा है। मसलन इसके अंदर दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि आप देखते हैं सेक्रेटरीज चेंज होते रहते हैं, मिनिस्टर्स चेंज होते रहते हैं, लेकिन ये परफॉर्मेंस एग्रीमेंट उस मिनिस्ट्री का अगले साल का एजेंडा या अगले 2 साल का एजेंडा बता देता है कि जी हमने ये इंपॉर्टेंट काम इस मिनिस्ट्री ने डिलीवर करने हैं और प्राइम मिनिस्टर इसके बारे में पूछेंगे हमसे।
मसलन वाटर मिनिस्ट्री का ही मैं आपको एग्जांपल ले लेता हूँ। उनके मिनिस्टर फैसल वाडा से मुनसिफ इलाही साहब आए। जब वो आए तो उन्हें दोबारा एजेंडा बनाने के बजाय उन्होंने परफॉर्मेंस एग्रीमेंट्स को देखा और उनको समझ आ गई कि वाटर मिनिस्ट्री ने अगले 1 साल 2 साल के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें करनी है, हर क्वार्टर उन्होंने क्या डिलीवरी करनी है और किन चीजों के ऊपर उन्होंने फोकस करना है। इसी तरह ये सिर्फ मिनिस्टर से ही रिलेटेड नहीं है, सेक्रेटरी से भी रिलेटेड है ये, कि अगर सेक्रेटरी 2 साल रहते हैं या 3 साल रहते हैं या 1 साल रहते हैं, जितने भी टाइम के लिए रहते हैं, वो आते हैं तो हम देखते हैं शख्सियत की बुनियाद पर मिनिस्ट्रीज और चीजें चल रही होती हैं। सेक्रेटरी आते हैं, अपनी मर्जी से चीजें चलाना शुरू कर देते हैं, एजेंडा कहीं पीछे रह जाता है। तो इन एग्रीमेंट्स की वजह से फायदा ये होता है कि एक सेक्रेटरी आते हैं, काफी जगहों पे हुआ भी है, मसलन इंडस्ट्रीज के अंदर हुआ है, कम्युनिकेशन के अंदर हुआ है। जब वो नए सेक्रेटरी आए तो उनके पास एक एजेंडा पड़ा हुआ था कि जी ये चीजें हैं जो मैंने आगे लेकर चलनी है। तो एक तो चीजें इनका फायदा ये हो गया। फिर एक और चीज जो मैं जैसे मैं आपसे कह रहा था कि ये पब्लिक हो चुका हुआ है डॉक्यूमेंट, इसके अंदर सारी चीजें हैं। अब जैसे अगर एक और मंसूबा देखा जाए कि जी हमने PC1 कंप्लीट करना है राइट बैंक कैनाल चश्मा का, तो जब इस साल कंप्लीट हो जाएगा तो अगले साल के जब टारगेट्स हम बनाएंगे उनके साथ, तो वो फिर हम इनके साथ बनाएंगे कि जी आपने PC1 तो कंप्लीट करवा लिया, लेकिन अब आउटकम के ऊपर आप फोकस करना शुरू करें, जो कि मिनिस्ट्री खुद ही कर रही होगी। वो खुद ही लेकर भी आएंगे कि हमने कितनी % कंप्लीशन कर देंगे, कब टेंडर कर देंगे, कब क्या चीजें होंगी। ये तो कुछ चीजें ऐसी हैं। इसके अलावा भी काफी चीजें हैं जो कि मिनिस्ट्रीज के साथ डिस्कस तो हो रही होती हैं, जो कि उन्होंने सोच रहे होते हैं। मसलन अगर हम FBR का देखें तो FBR के अंदर हमने उनसे खुद डिस्कस किया और उन्होंने भी कहा कि हमें सिटीजन परसेप्शन सर्वे लेकर आना चाहिए, ताकि हमें पता चले कि हम जो चीजें करते हैं उससे जो हमारे कस्टमर है यानी कि सिटीजन जो हैं उससे क्या फीडबैक हमें मिलता है। इसी तरह अगर रेलवे की तरफ जाएं हम, तो पाकिस्तान रेलवे के अंदर इन परफॉर्मेंस एग्रीमेंट्स की वजह से उनको मजबूर किया और उन्होंने खुद लेकर आए कि जी हम फोकस करेंगे कि जी हमारी पंक्चुअलिटी ऑफ ट्रेन क्या होगी, ऑटोमेशन ऑफ ट्रेन होगी। इसके बाद उसी तरह जो इंसिडेंट्स हैं वो किस तरह हमने, एक्सीडेंट्स जो हैं वो हमने किस तरह कम करने हैं, उनके स्पेसिफिक टारगेट्स उनको दिए गए हैं, उनकी सारी चीजें उन्हें दी गई हैं। इसी तरह जब ये इवॉल्व हो रहे हैं ये साथ साथ, इसके अंदर और चीजें आती रहेंगी। मसलन इसके अंदर जो रेलवे के अंदर जो हम आगे देखते हैं वो होगा कि सर्विस डिलीवरी जो है रेलवे की, कंफर्ट लेवल जो है वो कितना इंप्रूव होगा, ड्यूरेशन कितनी इंप्रूव होगी फ्रॉम प्लेस A टू प्लेस B। फॉर एग्जांपल कराची से लाहौर के दरमियान क्या 20 घंटे लग रहे हैं, तो अब क्या 10 घंटे की तरफ हम जाना शुरू होंगे, सर्विस कैसी होगी। तो इन चीजों के ऊपर जाना शुरू करेंगे। इसी तरह और भी डिफरेंट आइडियाज हैं जो प्राइम मिनिस्टर के हैं, मिनिस्ट्रीज के हैं और सिविल सोसाइटी से जो आते हैं, वो भी यहाँ पर कैप्चर होना शुरू होंगे। तो ये तो कुछ फायदे हैं। एक और चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, जो जैसे मैंने आपको पब्लिक के लिए, इसके साथ साथ इसको प्राइम मिनिस्टर देख रहे हैं। हर क्वार्टरली इसका रिव्यू होता है। रिव्यू के बाद जो इसकी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं वो प्राइम मिनिस्टर को दिखाई जाती हैं। प्राइम मिनिस्टर उसके ऊपर अपना डिसीजन मेकिंग करते हैं। उसके ऊपर उन्हें पता होता है कि ये मेरा एजेंडा है, ये मेरी तमाम मिनिस्ट्रीज ने इंपॉर्टेंट चीजें डिलीवर करनी है, कौन सी मिनिस्ट्री कहाँ पर पहुंच चुकी हुई है, क्या इश्यूज आ रहे हैं, तो तमाम का तमाम एजेंडा उनके पास आ जाता है। इसके अंदर इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है, बिल्कुल है, और होती भी रहेगी। लेकिन ये इन तमाम चीजों की वजह से एक गवर्नेंस टूल है मिनिस्टर्स के पास और प्राइम मिनिस्टर के पास, जिससे उनकी सर्विस डिलीवरी, उनका काम, वो किस तरह सर्व कर रहे हैं सिटीजन्स को और किस तरह वो अपने मैंडेट या प्रोमिसेस जो उन्होंने किए हैं अवाम के साथ, किस तरह उनको फुलफिल कर सकते हैं। दिस इज वन टूल जिसके तहत वो ये चीजें इंप्रूव कर सकते हैं। जी जी नदीम साहब, Thank you very तो अभी much. जी Very much, very kind of you. Folks, please raise your hand that they've, mashallah, done a great job of presenting the Prime Minister's plan. I'm very happy to hear that. Bilal sir, I have a number of questions. In fact, too many. So let me just quickly get into them. Number 1, तो बड़ी अच्छी बात है, performance agreements हो गई हैं. I mean, very nice. But I mean, you know, we have to see, it's sort of get an overview. What do these performance agreements mean? देखिए ना, अब आप जरा गौर करें कि इसके पीछे मुझे ये समझ नहीं आ रही कि कोई
या तो कोई प्लान होता, कोई विजन होती, कोई ओवरआर्चिंग थीम होती, को हमें पता चलता कि ये हाउ डू दीज थिंग्स ऐड अप। मतलब मैं अब कई जगह देख रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मैं देख रहा हूँ एक पहली मिनिस्ट्री आपकी ले लें, कैबिनेट डिवीजन, ठीक है जी। अब कैबिनेट डिवीजन में जो मुझे हैरानगी हो रही है बहुत सख्त, कि कैबिनेट डिवीजन में सब कुछ है बट कैबिनेट, कैबिनेट का काम कोई नहीं है, ठीक है जी। आपने कैबिनेट का कोई काम नहीं रखा हुआ, आपने कैबिनेट डिवीजन में उनको कहा है कि भाई जान फलाने के काम में दखल दे, फलाने के काम में दखल दे, ये वो करें, ठीक है जी। कैबिनेट डिवीजन को अगर आप देखें, वो कहते हैं जी कि आपने पीटीए को भी ठीक करना है, पीटीडीसी को भी ठीक करना है, नेपरा को भी ठीक करना है। भाई कैबिनेट का काम ये कहां से है? कैबिनेट का काम तो कैबिनेट का काम है। तो कैबिनेट के काम पे तो आपने एक चीज नहीं लिखी हुई, आपने ये नहीं कहा कैबिनेट के एजेंडे को कैसे ठीक करना है, कैबिनेट का प्रोसेस को कैसे ठीक करना है, कैबिनेट की मीटिंग्स को कैसे बेहतर बनाना है, लोगों को कैसे पता चलेगा। फॉर एग्जांपल हमें अभी तक मिनट्स नहीं मिलते कैबिनेट के। तो ये बहुत बड़ा मसला है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि ये, यस उन्होंने गोल्स तो लिख दिए हैं, बट हम गोल्स को कैसे पढ़ें, मुझे समझ नहीं आ रही। अब ये कह रहे हैं कि जी बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट का रिवाइज इन्वेस्टमेंट पॉलिसी 2030, draft the legal framework, finalize the ease of doing business plan, strategy for 3 years, draft the foreign private investment। ये तो सब चीजें डोनर्स से करवाएंगे। तो फिर आपने डोनर्स का कोई प्लान बनवाया हुआ है? क्योंकि हमें पता है कि $38 मिलियन की एडम स्मिथ इंटरनेशनल को ये काम करने के लिए मिल गए, ठीक है जी। और दूसरी चीज मुझे समझ नहीं आ रही कि अगर ये लोग सब दूसरे का काम कर रहे हैं, अपना काम नहीं कर रहे हैं, कि नेपरा के अंदर इंटरफेयर कर रहे हैं, पीटीए के अंदर इंटरफेयर कर रहे हैं, भाई उनके लिए सेपरेट परफॉर्मेंस प्लान नहीं होना चाहिए? मिनिस्ट्री का क्या काम है कि वो इंटरफेयर करे? मुझे पता है प्लानिंग हमने भी दी हुए परफॉर्मेंस मेजर्स टू द मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग। उनको हर 3 महीने के बाद ख्याल आता है, हमें पूछते हैं बताओ भाई बताओ, हम उनको बताते हैं, उनको समझ ही कोई नहीं आती, वो आगे आपको पास ऑन कर देते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग को 1 मिनट नहीं समझ आती जो हम बात कर रहे हैं। तो क्या किया जाए? मुझे तो पहला ये सवाल बताइए इसके बारे में, देन आई विल आस्क माय नेक्स्ट क्वेश्चन। जी बिलाल साहब। अच्छा साहब, मैं तो इस कैबिनेट का पहले जरा इनके साथ डिस्कस कर लूं। नदीम उलक साहब का बड़ा अच्छा रेलेवेंट क्वेश्चन है। इसके अंदर मैं थोड़ी सी एग्जांपल दे देता हूं कि कैबिनेट ने अपना काम भी डाला हुआ था, ऐसा नहीं है कि नहीं डाला हुआ। फॉर एग्जांपल जो कैबिनेट की डिजिटाइजेशन हुई है, और अगर सेक्रेटरी साहब से पूछा भी जाए तो पिछली दफा जब था तो उन्होंने डिजिटाइजेशन के जी तमाम मिनिस्टर्स के पास समरीज और ये सारी जो चीजें आनी है और कैबिनेट का एजेंडा जो आना है वो सारा का सारा डिजिटाइज होगा कैबिनेट। तो वो उन्होंने इनिशिएटिव 2020-21 में डाला था इस परफॉर्मेंस एग्रीमेंट के अंदर, उसको उन्होंने किया और वो उसको आगे कर भी रहे हैं। सेकंड थिंग, तो वो एक तो इस तरह की चीजें भी इम्प्रूव हो रही हैं और इस तरह की भी काम हो रहे हैं कैबिनेट के अंदर, जो कि आपको इसमें नजर नहीं भी आ रहा। दूसरी चीज जो आपने कही है कि कैबिनेट सिर्फ बाकी चीजों को देख रही है और अपना काम नहीं कर रही, वो तो मैंने आपको एक बता दिया। दूसरी चीज ये है कि कैबिनेट के अंदर डिफरेंट, जैसे नेपरा है और दूसरी चीजें हैं जो आ रही हैं। आप जैसे कह रहे हैं कि क्या उनका बनाया है कि नहीं बनाया, उनका भी बनाया है, लेकिन वो मिनिस्ट्री उस अपने ऑटोनमस बॉडी आप उसको कह लें या रेगुलेटरी बॉडी कह लें, उसके साथ मिल के उन्होंने अपना परफॉर्मेंस एग्रीमेंट बनाया है। उसमें से वो चीजें वो बता देते हैं कि जी हम ये चीजें करेंगे। उसके बाद अगर मैं एग्जाम्पल लूं, क्योंकि कैबिनेट के अलावा भी काफी मिनिस्ट्रीज हैं जो कि अपना काम कर रही हैं, मसलन जैसे मैंने आपको उसकी एग्जांपल दे रहा था एविएशन डिवीजन की। तो एविएशन डिवीजन ने अपना काम बता रहे हैं कि जी हमने किस तरह प्रमोशन करनी है कनेक्टिविटी की, टूरिज्म के लिए हम लोगों ने क्या चीज करनी है, एयरपोर्ट्स की सर्विस बेहतर करने के लिए हमने क्या करना है, उसके अंदर आउटसोर्स करना है क्या नहीं करना। तो ये चीजें साथ साथ चल रही हैं। उसमें मिनिस्ट्री टू मिनिस्ट्री डिफर करते हैं परफॉर्मेंस एग्रीमेंट। उसके अंदर कुछ मिनिस्ट्रीज हैं, जैसे वाटर अगर ले लें तो वो वापडा से रिलेटेड उनका काफी ज्यादा काम है। इंटीरियर ले लें तो उनका सीडीए से रिलेटेड या नादरा से रिलेटेड काफी ज्यादा काम है। लेकिन उसके साथ साथ वो अपनी चीजें भी, अपने प्रोसेस भी बता रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कुछ मिनिस्ट्रीज के अंदर ई ऑफिस है, वो अपना वो बता रहे हैं कि हमने किस तरह करना है, इंटरनल ऑडिट के क्या करने हैं। अच्छा, इसके अंदर एक चीज जो आपको ज़हन नशीन रखनी चाहिए कि जो आप चीज ये देख रहे हैं इसके अंदर डिलीवरिंग रिजल्ट्स के अंदर, इसके अंदर इनिशिएटिव की ऊपर से डिटेल्स के आखिरी में क्वार्टर में वो क्या करेंगे, इसके अंदर इनके डिटेल प्लान हर क्वार्टर वाइज हमारे साथ उन्होंने बनाए हुए हैं। क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर वो उन्होंने कोई पॉलिसी चेंज कर रहे हैं तो उन्होंने उनके बेंचमार्क्स बताए हुए हैं या आउटकम्स बताए हुए हैं कि क्या क्या करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं रेलवे की आपको एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि काफी कंक्रीट उनके हैं। मसलन अगर उन्होंने बताया हुआ कि पंक्चुअलिटी इंक्रीज करेंगे या वो अपनी ट्रेन के अंदर
ऑटोमेट करेंगे, तो उन्होंने बताया हुआ है कि जी हम कितना ऑटोमेट करेंगे, कब स्केड्यूल आना शुरू हो जाएंगे ऑनलाइन, आपको पता होगा कि इस टाइम पे ट्रेन यहाँ से चली है तो उसकी लोकेशन आपको पता होगा, आपने अगर टिकट लेनी है तो वो भी ऑनलाइन होगी। तो इस तरह की चीजें वो साथ साथ मिनिस्ट्रीज करती जा रही हैं। तीसरी चीज जो एक और इम्पोर्टेंट आपकी चीज थी कि डोनर्स वाली चीज, देखिए हम मिनिस्ट्रीज के साथ काम कर रहे होते हैं, हमें मिनिस्ट्री का आउटपुट चाहिए होता है, हमें मिनिस्ट्री डिलीवर करके जो वो खुद बनाती है, अपना एजेंडा खुद बनाती है, इसकी उसकी वो ओनरशिप भी लेती है। हम बहुत ज्यादा इस तरह नहीं फोकस कर सकते कि जी आप हमें बताएं आप खुद क्या कर रहे हैं और आपके डोनर्स क्या कर रहे हैं, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का और मिनिस्ट्रीज का रिलेशनशिप बड़ा डिफरेंट है। तो उसके अंदर हमें काम से मतलब होता है, हम ये नहीं उनको बता सकते कि आपने खुद करना है, डोनर से करना है या क्या करना है, तो इस वजह से हम ये चीजें नहीं कर सकते। मैं साथ से कहूंगा, साथ भी अगर रिप्लाई करना मुझे चाहेंगे ये क्वेश्चन बताइए कि हाउ कैन आई ट्रस्ट these bunch of initiatives when I don't know how they connect up? I have no idea how they connect up. And secondly, I still don't understand why PID should answer to the Ministry of Planning, why universities should answer to the Ministry of Education. I think we all agree the system needs to be decentralized. If the system is treated as such that we are all answerable to section officers and ministries, जैसे हमें तो सेक्शन ऑफिसर से फोन आता है, भाई आप परफॉर्मेंस क्राइटेरिया देते, सेक्रेटरी साहब या डिप्टी चेयरमैन तो नहीं कभी हमारे साथ बैठते, ठीक है? तो आर यू हैप्पी विद दिस? इज दिस व्हाट यू वांट कि कैबिनेट का सेक्रेटरी जो एडिशनल सेक्रेटरी या सेक्शन ऑफिसर है वो पीटीए को जाके बताए और वो नेपरा को बताए? आई मीन हमारे सिस्टम में यही तो बर्बादी है, एंड यू आर परपेचुएटिंग इट और आर यू स्टॉपिंग इट? जी, who wants to answer that? So it's a valid concern. I would, partly answer this also through your first Let question. me put it slightly differently. Why can't you have a performance agreement with us? Why should it be with the Ministry of Planning? What is stopping you from having a performance agreement with NEPRA, PID separately? No, nothing stopping us. The thing is that this is something that, top down in today's world, top down push, and then then that will be sort of centralizing everything. And Nadeem Saab, if you are part of planning, the PID is part of planning. Now since it's part of planning, if the Prime Minister say has a separate agreement with one chairman PID, planning ke saath aleda, is that the intent? Are universities supposed to be part of a ministry? Is NEPRA supposed to be a part of a ministry? Is that the intent? Because I think, quite frankly, Yeshad ki committee mein bhi debate hui thi, aap aaye the. I strongly believe it is not the intent. I strongly believe we should decentralize the system. Autonomous agencies have a right to be autonomous and not be answerable to ministries. The only reason we have these ministries attack departments because the fiction of the budget, because they have to be funded through something. That's all. It's a funding relationship. It's got nothing to do with, I mean, Punjab University should not be answerable to anybody, like Oxford and Cambridge, like, Harvard, Pennsylvania are not answerable to any ministry. They do get funding from the government. So, kya ye aapki vision nahi hai, ya you think that we are all attacked departments and we should be answerable to section officers there? No, not at all to section officers. This is unfortunately. That's a fact. I would. It is a fact. It is a fact. I'm not denying that. Bilkul, ye hai. This exists in the system. But देखिए, your concern, जो आप बात कर रही हैं, this is specific to cabinet. There are lots of other ministries. Not cabinet. Sorry, planning bhi yahi hai. We are with planning. Education bhi yahi hai. Everywhere it's the same thing, because you are allowing the ministries to run the attack departments. Okay? Railway mein bhi hai. For example, railway ministry, the attack department should be railways. Hamari to railway baat hui, I'll come to that later. Our analysis of railways is railway should not be a part of the ministry. PIA should not be a part of the ministry. Dunia jahan mein autonomous agencies chalti hain, and your plan seems to not recognize that. That worries me. Right. So, the performance agreements, from the evaluation standpoint, your concern is 100% spot on valid. Where, jahan pe, I would say we've blurred the lines. But
this solution that, or this reform, or however you would like to put it, is trying to solve a different problem. This problem, everybody says कि हुकूमत काम नहीं करती, हुकूमत चीजें फंसा के बैठ जाती है, हुकूमत में ये चीज, and I agree with it कि ये होता है, notification या ये NOC या ये meetings, this that, they get stuck. There are issues, there are lots of lots of reasons which can be used to support these issues कि भाई capacity नहीं है, बंदे नहीं थे, फलां बंदा नहीं हुआ, वो notify नहीं हुआ था, committee नहीं बनी, तो कम से कम इस particular process के जरिए हम इसको एड्रेस कर रहे हैं. हम ये एड्रेस नहीं कर रहे कि हम पीटी को अगर पकड़ लेंगे, हम ये एड्रेस नहीं कर रहे कि पाइड जाके सेक्शन ऑफिसर से बात करेगी. आइडियली आपकी जो फीडबैक है, दिस कुड पोटेंशियली बी यूज्ड कि पाइड पॉपुलेट्स और गिव्स मतलब अपनी अपडेट एंड अपनी परफॉर्मेंस वो खुद बताए, राइट? इट डजंट हैव टू गो थ्रू एनी सेक्शन ऑफिसर. जी अच्छा, एक दो चीजें मैं कहना चाहूंगा. पहला तो था साहब आपका बड़ा अच्छा क्वेश्चन कि हाउ दिस एड्स अप. अच्छा, उसके अंदर एक एड अप के लिए हम हर मिनिस्ट्री से या डिवीजन से हम एक्सरसाइज करते हैं जिसके अंदर हम उनसे पूछते हैं कि आपका विजन और मिशन क्या है, और जो विजन आप करना क्या चाहते हैं उसको फिर देखते हैं, और फिर देन वी मेक श्योर कि दैट अलाइन देयर एग्रीमेंट्स आर अलाइंड इन अ वे कि जो मिशन के अंदर स्टेटमेंट कह रहे हैं कि हमने ये चीज करनी है, ये चीज करनी है, ये चीज करनी है, वो अलाइन हो रही है कि नहीं हो रही. दूसरा जो ओवर आर्चिंग प्रिंसिपल है इसके अंदर इन एग्रीमेंट्स के अंदर, उनका ये है कि प्राइम मिनिस्टर का एजेंडा जो है, अगर हाउ दिस एड्स अप अगर मैं कहूँ कि प्राइम मिनिस्टर का एजेंडा, दिस इज अ टूल टू इम्प्लीमेंट प्राइम मिनिस्टर्स एजेंडा एज वेल एज एडिशनल एजेंडास जो हर मिनिस्ट्री के अंदर हैं. तो एक तो चीज वो होती रहती है. दूसरी चीज जो आपकी बात है जिसको साथ में कमेंट भी किया है कि फाइट, इसके अंदर हम ये आगे जाके कर सकेंगे क्योंकि ये भी सिर्फ मिनिस्ट्रीज के साथ हो रहा है. उसके बाद मिनिस्ट्रीज अपना एक पूरा मैकेनिज्म बना रही हैं उनके साथ. वहां पर क्योंकि हम टॉप डाउन नहीं आना चाहते, वो ये नहीं हो सकता कि 400 इंस्टीट्यूशन प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के साथ कर रहे हैं और ये सेंट्रल हब है उसके साथ कर रहे हैं. मे बी लेटर हम हर मिनिस्ट्री के साथ मिलकर उनको फैसिलिटेट करें ताकि वो पाइट के साथ एक पूरा जो डिजिटल सिस्टम है उसी को वो नीचे भी लेके जा सकें, और उसको कैसे बॉटम अप अप्रोच से, डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच से चीजें आके सिटीजन तक पहुंचाई जा सकें ताकि उनको पता हो कि हमारी हुकूमत क्या कर रही है, क्या करने जा रही है. कोई है प्राइम मिनिस्टर हैं जो कि इन सारी चीजों को देखते हैं, इन सारी चीजों के ऊपर अकाउंटेबिलिटी भी कर रहे हैं, और साथ साथ मिनिस्ट्रीज भी देख रही हैं कि कैसे हमने अपनी चीजों को इम्प्रूव करना. जी नजीम साहब. जी साथ साथ मैं एक और चीज आपसे, सॉरी बिलाल साहब से एक और चीज पूछ लूं कि सपोजिंग ये क्या कहते हैं, some ministries don't deliver, or let's say PIDE doesn't deliver. What is the cost? Let's say I refuse to do anything. We say, yaar, we are dead. We don't deliver. तो आप क्या करेंगे? नंबर 2, मैंने एक चीज सर्च करके देखी है कि आपके डॉक्यूमेंट में मैंने सर्च किया, the term evaluation is not used anywhere. ठीक है, मेरा ख्याल है कहीं भी नहीं. Let me recheck. ठीक है, for example, आप क्या, why are you not asking the Ministry of Finance to evaluate PIDE and even put us to sleep if necessary? ठीक है जी, मतलब for example मैं कॉमर्स डिवीजन में देख रहा हूँ, there is no वो क्या कहते हैं, there is no evaluation कहीं नहीं यूज, एक जगह बस यूज हुआ है परफॉर्मेंस evaluation, otherwise the term evaluation is not used anywhere in the document. मतलब in a sense nobody is evaluating anything. अब मुझे एक बात बताइए, कॉमर्स डिवीजन में जब देखता हूँ तो there is no evaluation or even direction to the Pakistan वो trade development body, which I think is a body that has never performed anything because exports have never gone up. तो उनको तो आपने बिल्कुल फ्री छोड़ दिया है. ठीक है, सो एक तो ना आपके पास कोई है अकाउंटेबिलिटी का मैकेनिज्म, ना आप उनको कुछ कह सकते हैं. सिर्फ ठीक है कैबिनेट रूम में प्राइम मिनिस्टर थोड़ा झाड़ दिया, वहां पे चले गए, वो तो हम लोग बड़ी अच्छे लोग हैं, मैं एकदम थोड़ा सा हंस के सर बस देते ना, गलती कर दी सर, बड़ी अच्छी बात है सर, आप बड़ी ठीक कह रहे हैं, खत्म होगी बात. ना आपके पास कोई टीथ है, ना आप कोई इवैल्यूएशंस कर रहे हैं.
नंबर 2, एक और भी इसके साथ साथ ही बात कर दूं, द टर्म रीस्ट्रक्चर इज ओनली बीन यूज्ड वंस फॉर कॉमर्स मिनिस्ट्री। क्या बाकी सारी मिनिस्ट्रीज ठीक है कि कॉमर्स मिनिस्ट्री सिर्फ रीस्ट्रक्चरिंग की जरूरत है, बाकी सारी ठीक है? या थोड़ा बहुत आपने यूज किया है वो उस पे स्पोर्ट्स बोर्ड को थोड़ा रिस्ट्रक्चर करेंगे, वो भी मिनिस्ट्री करेगी, पीटीवी को थोड़ा कोई उसके एरिया को रिस्ट्रक्चर कर देंगे, नार के थोड़े कोई सेक्शन को रिस्ट्रक्चर। तो यानी कि बाकी तो सारी हुकूमत ठीक है ना, माशाल्लाह दे आर डूइंग वेरी वेल, रिस्ट्रक्चरिंग तो सिर्फ कॉमर्स मिनिस्ट्री को चाहिए। तो जरा ये मुझे थोड़ा सा बताइए ना, बिकॉज आई वाज लुकिंग फॉर मोर गवर्नेंस रिलेटेड एस्पेक्ट्स, कि अपने आप को रिस्ट्रक्चर करेंगे, कोई नई चीज करेंगे, कोई नई बातें करेंगे, इनके कोई रिस्ट्रक्चरिंग प्लान्स आएंगे आपके पास, पर वही चक्कर चलेगा, सेक्शन ऑफिसर, जॉइंट सेक्रेटरी, फाइल ऊपर नीचे सब कुछ, तो फिर बट द वे इज द चेंज। जी सॉरी, गो अहेड। Bilal, you mind if I answer? जी जी श्योर। Okay. Nadeem Saab, so interesting observations. And there are 10 instances of restructuring, right? So मैं आपको पहले आपको so देखिए, the way it connects evaluation के इसके अंदर how the performance agreement is being used to evaluate the ministry and their performance. Each ministry, every ministry has this one initiative, directory retirement meetings के, where the ministry has to sit every quarter and do an inward looking process जहाँ पे वो अपनी HR की performance को evaluate करेंगे. The retirement directory will then actually, given establishment के जो नए rules हैं, they can basically retire people within the ministries who are not performing. This is the start of a process. So एक तो performance agreements इस particular evaluation को push कर रहा है. Second, again, performance agreements, this is just the shell, what's been made public. At the back end, there are concrete, for each line that you read, for each initiative that you read, there are steps behind it. जो आप बात कर रहे हैं कि TDAP के साथ क्या करेंगे, restructuring कितनी हो रही है, that's part of the target. So when we actually sit with the ministries, that's where the evaluation starts to come. And as I said, this performance agreement is being used to facilitate the ministries in overcoming particular bottlenecks. हम मसले जो हैं वो ivory tower में बना लेते हैं, and then हम उनको खुद ब खुद चलने पड़ जाते हैं. मिनिस्ट्री का मसला अलग होता है, हम एक अलग मसला बना के बैठे हुए होते हैं. नेशनल फूड एक परफेक्ट एग्जांपल है. वो मसला कुछ और हल करने जा रही है, हम उनसे कुछ और करवा रहे हैं. बायोसिक्योरिटी एक चीज है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी कंट्री, एंड गिवन के एक यहाँ से रैंडम पुश आ रहा होता है मिनिस्ट्रीज का, तो बेसलाइन ही एग्जिस्ट नहीं करती इवैल्यूएशन के लिए. This serves as a baseline for the evaluation. This entire document is the baseline for the evaluation. So the evaluation part first had a very massive personal bias to it. कि उसको मुझे X बंदा पसंद नहीं है या मुझे Y बंदा पसंद नहीं है, हमारे मुल्क में ये मसला है कि फलां की बरादरी है, फलां ये है, फलां वो है, तो उसको हमने आगे नहीं आने देना, मैंने अपना बंदा आगे करना है, ग्रुप बंदियां हैं. This is still, obviously there are multiple loopholes in the system. Nobody's saying anything is perfect. This definitely is not perfect, but this serves as a good baseline, and it connects to the fact that each ministry was asked that, what is your vision? Ministries struggled before, but with time, when they understood that, for example, with power division, their basic vision is to make Pakistan energy secure. National food is to, vision is to, the objectives are, goal is to make Pakistan food secure. You also realize that there are ministries who are doing things which are basically not part of, not something that they're supposed to do. They were developed in the first place for a very specific purpose, but with time, वो off track हो गए. एंड वो मिनिस्ट्री की गलती नहीं थी, लेकिन अब मिनिस्ट्री को मौका मिला है कि जी अगर आपने मुझे इवैल्यूएट करना है तो मुझे आप इन चीजों पे करें. तो इट्स स्टिल अ स्टार्ट. मैं जरा 2-3 चीजें ऐड करना चाहूंगा. थैंक यू साद.
पहले तो था कि जी ये डॉक्यूमेंट और अकाउंटेबिलिटी का और ये क्या चीजें होंगी और किस तरह होगा। अच्छा, इसके अंदर एक चीज नदीम साहब आप देख लें कि पहले तो अकाउंटेबिलिटी जो हो भी रही थी काफी सब्जेक्टिव हो, तो दिस टूल इज अ वे टू फॉर अकाउंटेबिलिटी फॉर लेटर स्टेजेस, बट एट दिस पॉइंट इन टाइम हम तो इस टूल को इम्प्रूव कर रहे हैं, हम इसके टारगेट्स इम्प्रूव कर रहे हैं। ये तो प्रैक्टिस ही पहले फेडरल गवर्नमेंट में नहीं थी, पूरे पाकिस्तान में भी कहीं पे भी नहीं थी। आपको पता ही नहीं होता था कि फॉर एग्जांपल एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अंदर एक एजुकेशन मिनिस्ट्री है, उसने क्या डिलीवर करना है, आपको नहीं पता होता था। कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट ने कौन सी मोटरवे कब बना रहे हैं, किस तरह बना रहे हैं, या वो लोगों को जो टैग हैं, ई टैग हैं या एम टैग हैं, कब डिजिटाइज कर रहे हैं, उसके लिए क्या चीजें चल रही हैं लोगों को। दिस इज द फर्स्ट टाइम ये चीजें होना शुरू हो रही हैं, इसके अंदर इम्प्रूवमेंट्स आ रही हैं। तो ये तो पहली चीज, आप एक तरह से बेसलाइन बना रहे हैं, प्रैक्टिस एस्टेब्लिश कर रहे हैं। दूसरी चीज अकाउंटेबिलिटी, ये हमारा मकसद ये नहीं है कि हम डंडा लेके मिनिस्ट्रीज के पीछे पड़ जाएं, वो उन चीजों से डिस्करेज होती है मिनिस्ट्रीज। जब मैं या आपके पीछे पड़ जाऊंगा, हाँ जी फाइट को डंडा मार के जी बताएं, रादर देन दिस इज अ प्रोसेस जिसके अंदर हम उनके साथ मिलके फैसिलिटेट कर रहे हैं। और दूसरी जो अकाउंटेबिलिटी जो हो भी रही है वो ज्यादा पीयर प्रेशर से हो रही है, पब्लिक के प्रेशर से हो रही है। जब ये देखें, ये जो मैं आपके साथ बार बार शेयर करता हूँ, ये जो पब्लिक हो गई है नाउ, हमें अकाउंटेबिलिटी की जरूरत होगी, बिल्कुल होगी, लेकिन ये एक सेल्फ पब्लिक अकाउंटेबिलिटी यहाँ पर आ जाएगी, जहां पर मिनिस्टर्स एक तो एक दूसरे के साथ वो compete खुद कर रहे होते हैं। दूसरा, उन्हें पता है कि आफ्टर एवरी 3 मंथ्स उन्होंने पीआरसी रिव्यू के, जिसके अंदर उनके कुलीग सेक्रेटरीज वगैरह भी बैठे हुए हैं, मिनिस्टर्स भी बैठे हुए हैं और बाकी लोग भी बैठे हुए हैं, और फिर उसके बाद हर 3 मंथ्स के बाद प्राइम मिनिस्टर के सामने रिपोर्ट जा रही है। सिर्फ रिपोर्ट ही जाना कि यही पता चल जाए कि जी हम किस पोजीशन पर हैं, हमने कितने इनिशिएटिव्स कमिट किए थे, कितने पूरे कर लिए हैं, यही ट्रिगर करना शुरू कर देती है कि इंप्रूवमेंट आना शुरू हो जाए और अकाउंटेबिलिटी होना शुरू हो जाए। अगर हम इसको नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से लेकर जाना शुरू कर देंगे, जी हमने मिनिस्ट्रीज को डंडे मारने हैं, हमने उनको तंग करना है, हमारा ये फिलॉसफी ही डिफरेंट है कि हम चाहते हैं कि मिनिस्ट्रीज इसकी वजह से फैसिलिटेट हों, इसकी वजह से चीजें इंप्रूव करें, ना कि वो कहें कि जी इसकी वजह से तो मैं फारिग हो जाऊंगा 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद। ये आइट्रेटिव प्रोसेस है, इवॉल्व हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर सारी चीजें आती जाएंगी। जैसे आप कह रहे हैं कि टारगेट्स, इस दफा हमने टारगेट्स ड्यू टू डिफरेंट सेवरल रीजन, जिसके अंदर एक था कि एक तो कि काफी ज्यादा चीजें ऐसी हैं जो कि बड़ी सेंसिटिव होती हैं, उसकी वजह से नहीं हम डाल सके। तो मे बी जैसे जैसे इवॉल्व होती रहेगी, पब्लिक का आएगा और प्राइम मिनिस्टर चाहेंगे तो उसके साथ साथ इसको हम टारगेट भी मे बी पब्लिक कर दें और दूसरी चीजें भी पब्लिक कर दें। इसके साथ साथ देखें, ये अकाउंटेबिलिटी तो हो रही है, पिछले साल भी क्वार्टरली भी होती रही, एनुअल भी अकाउंटेबिलिटी इस तरह हो रही थी कि प्राइम मिनिस्टर जब मिनिस्टर्स को बुला रहे हैं, वो इसके ऊपर बात कर रहे हैं कि जी ये टारगेट्स थे, ये इनिशिएटिव्स थे, ये चीजें मेरे लिए इंपॉर्टेंट थी, ये मेरे लिए क्रिटिकल थी। तो वहां से खुद ब खुद अकाउंटेबिलिटी की चीज आ रही है, लेकिन हमारा मकसद अकाउंटेबिलिटी करना नहीं है, ना हम इस पोजीशन में हैं। वो प्राइम मिनिस्टर का इस्तेकाक है, प्राइम मिनिस्टर करना चाहें, जिस तरह भी करना चाहें, वो प्राइम मिनिस्टर के ऊपर हम छोड़ते हैं वो किस तरह का। हमारा काम है प्रोसेस को बेहतर करना, मिनिस्ट्रीज के इनिशिएटिव को बेहतर करना, मिनिस्ट्रीज के साथ मिलकर काम करना, कोशिश ये करना कि अकाउंटेबिलिटी की जरूरत ही ना हो, पीयर प्रेशर और दूसरी चीजों से ही चीजें इतनी बेहतर इंप्रूव हो जाएं कि लोग देख सकें कि जी पहले परफॉर्मेंस 40% या 50% थी, अब इंप्रूव होना शुरू हो गई है। जी नदीम साहब। जी बहुत आला जी, माशाल्लाह। वही अप्रोच ले रहे हैं जो हम पाकिस्तान में एग्जाम्स में बच्चों के साथ लेते हैं कि उनको इंकरेज करने के लिए स्टैंडर्ड्स लोअर कर दें। बड़ी अच्छी बात है, कौम के लिए स्टैंडर्ड्स नहीं लोअर होते, कौम तो बेचारी टफ स्टैंडर्ड्स पे बैठी हुई है। अकाउंट खोलने में मुझे 4 महीने लग रहे हैं और काम करने में मुझे 100 महीने, पता नहीं कितने महीने लग जाते हैं, अड्डिये में रगड़ आऊं। पर आप कह रहे हैं मिनिस्ट्रियों के साथ माशाल्लाह हम सॉफ्ट अप्रोच लें, बड़ी अच्छी बात है, मैं तो आपसे फुल एग्रीमेंट हूं। मुझे एक और बात बता दें, जब मैं प्लानिंग देखता हूँ, there is no mention of any growth agenda, no mention of any plan. तो मुझे लग रहा है कि आप थोड़ा सा, you have not made a distinction between planning and policy या प्रोजेक्ट्स एंड पॉलिसी। मैं जब भी जितने गोल देख रहा हूँ बहुत ज्यादा एम्फेसिस प्रोजेक्ट्स पे, कम पॉलिसी पे। इसके साथ साथ एक और रिलेटेड चीज है, हाँ एक और मिनिस्ट्री जो मिनिस्ट्री बहुत अच्छा कर रही है इज पॉवर्टी एंड सोशल वेलफेयर। उसका तो कोई गोल ही नहीं है, वो तो माशाल्लाह
सब कुछ कंप्लीट है, ठीक है, ये भी बड़ी अच्छी बात है। चले, हमें बड़ी खुशी हुई कि एक मिनिस्ट्री तो माशाल्लाह बड़ी अच्छी कर रही है। प्राइवेटाइजेशन जब मैं देखता हूँ सिर्फ ट्रांजैक्शंस है, ये भी बेचेंगे वो भी बेचेंगे। हमने देख लिया पीछे के प्राइवेटाइजेशन मिनिस्ट्री में जो ट्रांजैक्शन हुए थे, खासतौर पे पीटीसीएल का, और क्या कहते हैं कई और ट्रांजैक्शन बड़े खराब हुए थे, बैंकों के बड़े खराब हुए थे। तो प्राइवेटाइजेशन मिनिस्ट्री को कोई रिस्ट्रक्चरिंग की जरूरत नहीं। क्या वो ट्रांजैक्शंस करने के केपेबल हैं कि नहीं है? तो क्या वो ट्रांजैक्शंस कर सकेंगे? हमने ये भी देखा है कि वो 10-10 बार एक ट्रांजैक्शन करने की कोशिश करते, नहीं होता। चलें, ठीक है। जो मुझे एक चीज बहुत बड़ी अजीब लगी है, जो मुझे बिल्कुल नहीं पता, कि मिनिस्ट्रीज कोई रिपोर्ट नहीं पेश कर रही अपने काम के बारे में। फॉर एग्जांपल, मैं चाहता हूं अपने एरिया में रिपोर्ट तो हमें दें ना, डेटा तो दें कि अगर उनकी ये प्राइवेटाइजेशन कमीशन डेटा तो दें कि भाई क्या हो रहा है। अगर नेपरा है तो नेपरा हमें बताए तो सही सर्कुलर डेट कितना है, नेपरा हमें डेटा तो दे। अगर कोई चीज़ है हमें डेटा तो दें, बताएं तो सही, रिपोर्ट दें। जो एक सरकार का तरीका था गोरे के ज़माने में, वो ये था कि वो मिनिस्ट्रियाँ रिसर्च करके देती थी। अब अपने मिनिस्ट्रियों से ये बोझ ही उतार दिया कि वो रिसर्च करें ना, ठीक है। आपने बड़ा अच्छा कह दिया है कि जी माशाल्लाह उनकी विजन बनवाइए, तो विजन बनवाइए तो हमें दे दें, खुदा के वास्ते। क्यों आप सीक्रेट रख रहे हैं? विजन में पता चले मिनिस्ट्री की क्या है। दूसरी चीज, अगर आप ये कह रहे हैं कि वो आप डोनर को वॉच नहीं कर सकते, तो कम से कम इनको तो वॉच कर सकते हैं कि ये खुद अपना काम करते हैं कि नहीं करते। क्या ये डोनर से करवा रहे हैं? क्या आर यू कंफर्टेबल? आई एम वेरी अनकंफर्टेबल with donor input going straight to the cabinet, with the prime minister opening donor reports and the prime minister singing to the tune of the donor. एक सीनियर इकोनॉमिस्ट जाके प्राइम मिनिस्टर के सामने बैठ जाता है और प्राइम मिनिस्टर माशाल्लाह तारीफें कर रहे होते हैं उनकी। तो ये भी एक अजीब चीज है। तो बड़ा सिंपल सा सवाल है, ना कोई मिनिस्ट्री अपनी विजन दे रही है, ना कोई मिनिस्ट्री अपनी कोहेरेंट प्लान दे रही है, ना कोई हमें पता चल रहा है कि कोऑर्डिनेट आपस में। जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, हमारी मिनिस्ट्रीज एक दूसरे से बात नहीं करती। प्लानिंग कमीशन का रोल है कोऑर्डिनेट करना, पर वो ग्रोथ प्लान ही नहीं बना रहे हैं, ना वो 5 ईयर प्लान बना रहे हैं, तो कोऑर्डिनेशन तो हो कोई नहीं रही। ये आपका मैकेनिज्म बस एक कोऑर्डिनेशन कराया गया, बाकी कोई नहीं। इट इज नॉट अंडरपिन्ड बाय ग्रोथ प्लान। तीसरी चीज, ये रिपोर्टें तो कोई वो हमें देते नहीं है, तो वो तो सिर्फ उनके लिए आपने वो टिकिंग द बॉक्स कर दिया कि भाई तुम ये भी कर दो, वो भी कर दो, वो भी कर दो। हाउ अबाउट मेकिंग देम थिंक? or have the ministries given up thinking and they're only transactions oriented? मैं जब हुकूमत में था, बिलाल साहब, मैं हमेशा ये कहता था, और कैबिनेट में मैं अभी भी यही कंप्लेंट है कि कैबिनेट इज अ ट्रांजैक्शंस बॉडी, मेरे दुनिया जहान में कैबिनेट इज अ कंसेप्चुअल बॉडी, ठीक है। ईसीसी तो है बिल्कुल ही ट्रांजैक्शन, उसमें तो काम ही कोई नहीं होता सिवाय ट्रांजैक्शंस के। वेयर डू वी कंसेप्चुअलाइज इन द गवर्नमेंट? तो आपने ये ट्रांजैक्शंस ओरिएंटेड चीज फिर बना दी है। वेयर इज द कंसेप्चुअलाइजेशन? बताइए जी। अच्छा, इसके अंदर जो आपका है कि थिंकिंग और रिपोर्ट्स वगैरह नहीं कर रहे, उसके अंदर हम लोग इनके साथ कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, मैं आपके साथ एग्जांपल ले लेता हूँ एसबीआर की। तो फॉर एग्जांपल, हमने इनसे कहा कि आपका अगले 10 साल का क्या प्लान है, आप लोग क्या टैक्स पॉलिसीज लेकर आना चाह रहे हैं। इसी तरह आप 15 स्पेसिफिक सेक्टर स्पेसिफिक स्टडीज करें, तो हम उनको इस तरह पुश कर रहे हैं। दूसरी, इसी तरह सिर्फ ये एसबीआर से ही रिलेटेड नहीं है, उसके अलावा भी हम बाकी मिनिस्ट्रीज के अंदर वो रिपोर्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप देखें रेलवेज का, तो रेलवेज के हमने उनसे कहा है कि जी, जो उन्होंने भी, खैर हमने तो कहने से ज्यादा उन्होंने खुद ही हमें चीजें दी हैं कि जी हम अपने सर्विस डिलीवरी के, जैसे मैं बता रहा हूँ कि पंक्चुअलिटी के ऊपर क्या वो चीजें करेंगे, कितनी पंक्चुअल होंगी, कितनी परसेंटेज होगी, उसके अंदर प्रोसेस वो अपने सारे वो करते रहेंगे, लेकिन साथ साथ वो हमें बताएंगे। फिर उसके बाद वो अपने अर्निंग्स किस तरह इंप्रूव करेंगे, प्रॉफिटेबिलिटी किस तरह करेंगे, रीस्ट्रक्चरिंग जो कर रहे हैं उसके अंदर वो क्या करेंगे। इसी तरह एविएशन के अंदर अगर हम देख लें, तो एविएशन के अंदर वो एक तरह से वो आपको बता रहे हैं कि जी हमने कनेक्टिविटी के लिए क्या कर रहे हैं, डोमेस्टिक कनेक्टिविटी के लिए, एयरपोर्ट्स की सर्विसेज बेहतर करने के लिए क्या कर रहे हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ ट्रांजैक्शनल एक्टिविटीज हैं, उनकी रिपोर्ट हैं जो कि वो करेंगे भी और वो काफी करेंगे। कुछ हमने चीजें, हर चीज हमने यहाँ पर नहीं लिखी, मतलब हम लिख देते कि जी पब्लिशर रिपोर्ट। पब्लिशर रिपोर्ट एक रिपोर्ट सिर्फ नहीं बताएगी कि वो मिनिस्ट्री कैसा कर रही है, उसके साथ साथ और भी चीजें मिनिस्ट्री को चाहिए जिसके अंदर वो बता सकें कि हम सर्विस डिलीवरी के लिए क्या कर रहे हैं, अवाम के लिए क्या कर रहे हैं, अपने मेथड्स के लिए क्या कर रहे हैं। अब जैसे आपने एक एग्जांपल बड़ी अच्छी दी कि बैंकिंग सेक्टर के अंदर वो आपको जो अकाउंट बनाने में 4 महीने लग गए, तो अगर इसी तरह की जो सर्विस डिलीवरी से रिलेटेड चीजें हैं उसके अंदर हम लोग, एफबीआर की मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे पोर्ट अथॉरिटी बन रही है, उसके अंदर हमारा उनसे था कि जी एग्जिस्टिंग बेंचमार्क क्या है, बाकी मुल्कों में क्या है, कितनी देर में क्लियरेंस होती है,
उसके अंदर आप बताएं कि अगर 40 दिन होते हैं तो इस आफ्टर दिस अथॉरिटी बनने के क्या नंबर ऑफ डेज रिड्यूस होंगे। इसी तरह फॉर एग्जांपल और चीजें ले लेते हैं, मैं आपको लॉ की एग्जांपल दे देता हूँ। लॉ की एग्जांपल जब आप आउटकम के ऊपर हम बात कर रहे हैं, रिपोर्ट के ऊपर, मसलन हमने उनसे फेडरल ट्राइब्यूनल्स और उनके ऊपर बातचीत जब की तो उन्होंने खुद बताया कि जी हमारे कोई 50 से ज्यादा फेडरल ट्राइब्यूनल्स हैं और उसमें कोई 170 के करीब उनके ऊपर जजेस और ये वगैरह लगने हैं, और तकरीबन बैकलॉग ऑफ केसेस 1,20,000 था, 1,20,000। तो हमने कहा कि आप इसको इम्प्रूव करने के लिए, लोगों की सर्विस डिलीवरी के लिए आप क्या करने जा रहे हैं। तो उसके अंदर से अगर आप लॉ के अंदर जाके देखें तो इससे रिलेटेड काफी चीजें हैं। मसलन एक तो ये है कि वो इस जब से ये शुरू हुआ तो 60-70 के करीब लॉ जो थे ट्राइब्यूनल्स वो भरे हुए थे, उसके बाद 100 के करीब हो गए। अब उनका टारगेट ये है कि 170 के करीब लेके जाएं उन ट्राइब्यूनल्स को, ताकि जितने हैं वो सारे फील्ड हों, ताकि केसेस जल्दी जल्दी रिजॉल्व हो। दूसरा उन्होंने आउटकम टारगेट साथ बताया है कि जी हम लोग इनको जो केसेस हैं, जितना बैकलॉग है उनको रिमूव भी करेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ इनके लिए नहीं है, एफबीआर के भी जो केसेस या पिटिशन फंसी हुई हैं उनको भी वो साथ साथ रिमूव भी करेंगे और आगे चीजें भी इंप्रूव करेंगे। फिर इसी तरह लॉ के अंदर मैं आपको एक और एग्जांपल के जी, फॉर एग्जांपल आपके ऊपर केस हो जाता है या मेरे ऊपर केस हो जाता है तो हमें पता ही नहीं चलता कि जी कौन सी जगह पर कब केस है, डेट क्या है, क्या चीजें हैं। तो अब वो लोग उसको डिजिटाइज करने चाह रहे हैं। इस चीजों के ऊपर हमारा है कि जी तमाम चीजें डिजिटाइज हो, पता हो। ऑफ कोर्स कुछ चीजों के ऊपर, कोर्ट्स के ऊपर और कुछ चीजों के ऊपर कॉन्स्टिट्यूशनल चीजें होती हैं जहां पर वो इंटरफेयर नहीं कर सकते, लेकिन हम लोगों की तरफ से, और जिसके अंदर लॉ मिनिस्ट्री खुद चीजें लेकर आ रही होती है कि जी हमने ऑटोमेट करने के लिए क्या चीजें कर रहे हैं। हम लोग अगर सिटीजन को फैसिलिटेट करने के लिए, ताकि उनको पता हो कि हमारी केस कब होगा, किस तरह होगा, और उसकी डेट्स क्या है और किधर क्या हो रही हैं और केसेस कितने रिजॉल्व हो चुके हुए हैं। तो इसके ऊपर काम चल रहा है डिपेंडिंग ऑन मिनिस्ट्री टू मिनिस्ट्री। जैसे मैंने आपको लॉ का बता दिया है, एफबीआर का बता दिया है, रेलवे का अलहदा तरीके हैं, वाटर के अलहदा तरीके हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आप कह रहे थे कि एवेल्युएट कहीं पे हो रहा है कि नहीं हो रहा, फॉर एग्जांपल इर्सा जो था, हमने इनसे कहा कि आप थर्ड पार्टी से जरा एक दफा उनको ऑडिट तो करवाएं, परफॉर्मेंस ऑडिट करवाएं, पता चले क्या रिस्ट्रक्चरिंग की जरूरत है, नहीं जरूरत। उनकी तरफ से फॉर एग्जांपल पहले आ रहा था कि इर्सा खुद ही ये काम करेगी, तो देन वी सेड कि ये तो मिनिस्ट्री का काम होना चाहिए, वो थर्ड पार्टी खुद किसी और को लेकर आए और उनका ऑडिट करे, परफॉर्मेंस ऑडिट करे, ताकि पता चले कि क्या लूपहोल्स हैं, क्या इश्यूज हैं, ताकि वो रिजॉल्व हों। तो इसके अंदर आपको हर जगह पे रिपोर्ट्स ही नजर आएंगी, लेकिन उसी से रिलेटेड चीजें इसके अंदर हैं। बाकी आपकी ये चीज भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हमें पता चलना चाहिए कि मिनिस्ट्री क्या कर रही है, क्या उनकी परफॉर्मेंस है। तो वो भी चीज हमारे है कि अगले साल जब एनुअल खत्म हो तो हम उनसे एक तरह की रिपोर्ट, जिस तरह की आप अभी हम देख रहे हैं परफॉर्मेंस एग्रीमेंट से अगले 2 साल के फॉरवर्ड लुकिंग, वो भी एक हो कि जी आपने 1 साल में क्या अचीव किया, डेटा बताएं, क्या चीजें थी, क्या थिंकिंग कर रहे हैं, पॉलिसीज क्या कर रहे हैं, किस तरह लेके जा रहे हैं। जी साहब, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? नदीम साहब, आपका क्वेश्चन अच्छा था कि कंसेप्चुअल थिंकिंग कहाँ होगी, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, one has to realize कि बहुत constraints हैं. It's not really a free market जहाँ पे मैं यहाँ पे जाऊँ, मैं जाके ये टूल डिजाइन कर लूँ। गवर्नमेंट मशीनरी का एक बड़ा सख्त इनर्शिया है। वो इनर्शिया सिर्फ तब टूटता है जब इलेक्शन होता है, एंड इलेक्शन के बाद गवर्नमेंट रीडायरेक्ट होती है, फिर वो दोबारा मोमेंटम गेन करता है। आप दरमियान में बार बार जाके गवर्नमेंट को, one can't expect के in the middle of the term आप गवर्नमेंट के इनर्शिया को रोकें, तोड़ें और उसको आप कहें कि जी आप नहीं, आप कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग इसकी करें। On conceptually speaking, trying to explain that इसमें परफॉर्मेंस एग्रीमेंट्स में मिनिस्ट्रीज को मौका मिला है कि वो अपनी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी बिल्ड करें। ये एक चैलेंज है कि मिनिस्ट्रीज के पास कंसेप्चुअली एक चीज को कॉन्स्टेंटली वो अपवर्ड्स मैनेजमेंट कर रहे होते हैं कि जी हमने अपने ये चीज निकालनी है आज, फ्रांचीज आज उसको देना है, निकालना है, अपवर्ड। देयर इज नो इनवर्ड्स मैनेजमेंट।
देयर इज नो मैनेजमेंट कि हमने मिनिस्ट्री को किस तरह बेहतर करना है, वो कोई रूटीन का हिस्सा नहीं है. सो दिस इज अ स्टार्ट. योर क्रिटिक इज वैलिड, but this is a start, and I think this is a alternative approach, because हमने इतने ज़्यादा different तरीकाकार, मैं आपको I'll talk about Ministry of Narcotics. एक इदारा है बिल्कुल जिसमें बेइंतहा मसले हैं. मिनिस्ट्री इतनी सी है, एंटी नारकोटिक्स फोर्स इतनी बड़ी है. हमने मिनिस्ट्री को पुश करके उन्हें कहा कि जी आपके पास, आप ड्रग्स के बारे में आप क्या कर रहे हैं, रैंडम इंटॉक्सिकेंट्स आए हुए हैं, आप यूथ बल्ज है, अनएम्प्लॉयमेंट है, XYZ प्रेशर्स है. सो मिनिस्ट्री ने एटलीस्ट उस कहने पे हेल्थ और नारकोटिक्स, दे डिसाइडेड टू कम टुगेदर and form some regulatory mechanism. Because in today's day and age, I'm pretty sure you won't disagree, there is a lot of bottom-up pressure on regulatory frameworks. And this is coming from the open market. Government ka ek had tak role hai. So it will take time for ministries to sort of conceptualize, understand, build routines. This is non-existent, unfortunately. And it's asking a lot, is my take on it. देखिए, I fully agree with you कि it's a good beginning, etc. But look, I think quite frankly, we've had too many beginnings in Pakistan and too few steps forward. And I think where we fail, this is my feeling, I may be wrong, where we fail is there's no conceptualization anywhere. We are a very transactional government. The Prime Minister is transactional, everybody's transactional. For example, what we are talking about right now is कि DGISA की appointment कैसे होगी? Yeah, the hell I care. ठीक है, मुझे क्या फर्क पड़ता है DGISA क्या लगे? जबकि मैं बैंक अकाउंट ही नहीं खोल सकता, तो मैंने DGISA को चार्ज डालना है. बड़ा शौक है इन लोगों को बातें करने का. DGISA बैंक अकाउंट तो मैं खोल नहीं सकता, पैसे तो मैं अपने इधर से बाहर नहीं निकाल सकता, कुछ भी नहीं कर सकता. तो मेरी तो जिंदगी खत्म होगी ना. मैं तो बैठा हूँ, कहते हैं तुम क्रेडिट कार्ड भी नहीं ले सकते, तो करें क्या हम? मसला ये है कि खुदा के वास्ते लेट्स गेट रियल. ट्रेन हमारी चलती कोई नहीं है, जहाज हमारे चलते कोई नहीं है, हमारे जहाज अफगानिस्तान तक तो जा नहीं सकते. ये जो मेस है, इसको कैसे हम ठीक करेंगे? देखिए, मैं आपसे एक और बात पूछना चाहता हूँ, बड़ी सिंपल, कि जी प्रोजेक्ट बहुत है हमारे पास, ट्रांजैक्शन बहुत हैं, कोई मिनिस्ट्री में रिस्ट्रक्शन आपने नहीं की, कोई मिनिस्ट्री का आपने ये नहीं किया कि यार खुदारा तुम हटो पीछे, तुम डिपार्टमेंट को चला क्यों रहे हो? हमारा जो बेड़ा गर्क हुआ है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि इन मिनिस्ट्रियों ने अपने अटैक डिपार्टमेंट का बेड़ा गर्क किया, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस का बेड़ा गर्क मिनिस्ट्रियों ने किया. ये नहीं कि वो खुद बेड़ा गर्क हुआ है, उनको मिनिस्ट्रियों ने चला के बेड़ा गर्क किया है, वहाँ बंदे भर के बेड़ा गर्क किए. ये आपके इसमें नजर नहीं आ रहा मुझे, और मुझे अफसोस हो रहा है कि वी मिस्ड अनदर अपॉर्चुनिटी. वी मिस्ड वन अपॉर्चुनिटी विद इशरत, वी मिस्ड अनदर अपॉर्चुनिटी, व्हिच इज व्हाई इफ यू लुक एट इट, फॉर एग्जांपल साद एंड बिलाल, मेरा ख्याल यहाँ एक मिनिस्ट्री का बंदा नहीं सुन रहा, because they are not taking you seriously at all. They feel कि यार ये क्या फर्क पड़ता है, ठीक है. कोई मिनिस्ट्री का बंदा इस डायलॉग में आना भी नहीं चाहता, because they figured it out कि यार हम तो बिगड़े हुए बच्चे हैं, हमें ये कह रहे हैं कि इनको माशाल्लाह थोड़ा सा और लॉलीपॉप दो, तो हम क्यों सुने भाई, हमारा क्या वजह है? तो ये मसला है. खैर, let me go to the floor and get some questions. जी, अभिया's phone. अभिया बोलिए. Okay, Assalamualaikum, and thank you so much for organizing this wonderful session. Abhiya, please And Dr. introduce Nadeem, yourself as well, so that we know who you are. So I'm Abhiya Zara. I'm working as an assistant professor at ITU, Department of Governance and Global Studies. Okay. So I'm working on performance, and it's been like very interesting. And I really like the point that you have raised around accountability. जो performance agreements हैं, there has been a lot of talk around it, but the whole concept of the performance agreements, your goals का कोई फायदा नहीं है अगर आपने उसे accountability mechanism के साथ link ही नहीं किया. That is what we see missing here. Plus, another important thing that I would like to add here is जब हम autonomous इदारों की बात करते हैं, जो point आपने पहले raise किया था, तो दुनिया भर में जब autonomous organizations बनी थी under NPM, तो the whole idea was to make them accountable on performance. ठीक है, उनको autonomy दी ही इस बात पर गई थी कि they will be made accountable on their performance.
अब उनके गोल्स उन्होंने खुद डिफाइन करने हैं एंड देन दे विल बी मेड अकाउंटेबल बाय द मिनिस्ट्रीज टू सी इफ दे आर वर्किंग एंड देन द मिनिस्ट्री विल बी हेल्ड अकाउंटेबल बाय द फेडरल गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट लिंक है, इट गोज द बोथ वेज। इट्स नॉट जस्ट अबाउट प्राइम मिनिस्टर सिटिंग एंड आस्किंग कि जी मिनिस्ट्रीज क्या कर रही हैं, मिनिस्ट्रीज, और फिर मिनिस्ट्रीज कैसे इंश्योर कर रही हैं दैट द ऑर्गेनाइजेशंस वर्किंग अंडर देम, how are they going to help them or coordinate with them to implement the goals that they have defined? Uska kya mechanism hai? How are they? I mean, the ministry itself is not going to complete all of that until the organizations working under them are going to do that. So I would like to see that how they have done that and how they are easily saying कि accountability तो हमने नहीं define की, बस goals बना दिए हैं, और that's very good thing that we have done. जी बिलाल सर। अच्छा जी सर, इसके अंदर दो तीन चीजें मैं अबिया से पहले थोड़ा सा मैं नदीम साहब आपकी बात पे भी दर्ज करता हूँ कि आप कह रहे थे कि मिनिस्ट्रीज यहाँ पे नहीं है और यहाँ पे नहीं है। मे बी हम अगर उनको मार्केट करेंगे इसका तो फिर ही उन्हें पता चलेगा। तो मे बी आई थिंक अगर हम उनको मार्केट उनके साथ करते तो वो जरूर आते और पार्टिसिपेट करते। वो जब भी हमारी मीटिंग्स वगैरह होती हैं, आगे पीछे होते हैं, तो दे ऑलवेज गिव अस फीडबैक है किस तरह इंप्रूव किया जा सकता है, एंड दे आर टेकिंग इट सीरियसली। दैट्स व्हाई काफी जगहों पर वो इसको देख भी रहे होते हैं, सेक्रेटरी मिनिस्टर लेवल तक ये चीजें जा रही होती हैं, नीचे तक जा रही होती हैं। तो इट्स नॉट के दे नॉट टेकिंग इट सीरियसली। दैट्स व्हाई एवरी मिनिस्टर वाज इन द एग्रीमेंट सेरेमनी। एवरी मिनिस्टर, मुझे अपने एक्सपीरियंस से पता है कि हर हफ्ते इस जब साइन होने से पहले एवरी मिनिस्ट्री एंड मिनिस्टर वाज कॉलिंग अस कि जी आप ये चीजें इसके अंदर ये इस तरह कर दें, इसके अंदर हमारे ख्याल में ये चीजें इस तरह होनी चाहिए, हाई इम्पैक्ट इनिशिएटिव इस तरह होने चाहिए, उस तरह होने चाहिए। तो दे आर टेकिंग इट सीरियसली। अब दूसरी क्वेश्चन जो था अबिया का कि जी ये अकाउंटेबिलिटी यहाँ पर किस तरह होगी, और अकाउंटेबिलिटी तो इसमें है ही नहीं। अच्छा, एक चीज मैं आपको बता दूं, इसके अंदर अकाउंटेबिलिटी तो जब आपको अगर गवर्नमेंट का थोड़ा सा भी आइडिया हो, तो जब भी आप चीज कोई पेपर पे लिख देते हैं ना, तो गवर्नमेंट के अंदर ये हमेशा से चीज रहती है कि अच्छा यार उन्होंने मेरी ये मैयर करना शुरू कर दी है। अगर मेरी फॉर एग्जांपल टीचर की अटेंडेंस मैयर होना शुरू हो गई है, या लीव्स मैयर होना शुरू हो गई है, या स्कूल की परफॉर्मेंस मैयर होना शुरू हो गई है, तो बैक ऑफ द माइंड हर सरकारी आदमी के जहन में होता है कि ये 10 साल बाद भी ये चीज निकाल के मेरे खिलाफ कोई भी चीज कर सकते हैं। तो पहली चीज तो ये है कि वंस इट इज डॉक्यूमेंटेड, सबसे बड़ी अकाउंटेबिलिटी तो यही आ गई। इससे पहले तो किसी को पता ही नहीं था कि फॉर एग्जांपल रेलवेज ने कितनी परसेंटेज अपनी जो है पंक्चुअलिटी बेहतर करनी है। तो पहली चीज तो यहाँ पर आ गई। दूसरी चीज, हम इसके अंदर, क्योंकि जैसे मैं आप लोगों को पहले ही बता रहे हैं हम लोग कि ये इवॉल्विंग चीज है, तो इसके अंदर पे फॉर परफॉर्मेंस आ रहा है। इसके अंदर फाइनेंस मिनिस्ट्री हमारे साथ मिलके काम कर रही है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के साथ मिलके, जिसके अंदर वो इसकी अकाउंटेबिलिटी कैरेट के साथ लेकर आएगी कि जिनकी परफॉर्मेंस बेहतर होगी मिनिस्ट्रीज की, उनकी जो है पे के साथ उसको लिंक करेंगे। इसी तरह एक और भी चीज साथ चल रही है जिसको ACRs कहते हैं, उसको भी इसके साथ लिंक करने की चीज की जा रही है, जिसको PERs हम कहेंगे। लेकिन हर चीज को एक साथ करना काफी दफा डिजास्टर हो जाता है, चीजें हो जाती है। तो इट्स स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, इंक्रीमेंटल प्रोसेस है। इसके अंदर ये तमाम चीजें हमारे जहन में हैं, अकाउंटेबिलिटी की भी और ये सारी चीजों की भी। और एक और चीज जो बार बार मैं कहना चाहूंगा कि जब पॉलिटिकल इसकी ओनरशिप है प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, मिनिस्टर्स की तरफ से, सेक्रेटरीज की तरफ से, तो वहां पर ही बहुत ज्यादा अकाउंटेबिलिटी आना शुरू हो जाती है। जब हमने प्राइम मिनिस्टर को बताया है और हर मिनिस्ट्री का हर 3 महीने बाद सिर्फ पूछगछ करने से ही, तो कहने का मकसद ये कि काफी ज्यादा विद इन सिस्टम काफी चीजें प्लग कर दी गई हैं, जिसकी वजह से अकाउंटेबिलिटी वो खुद ही फील कर रहे हैं। हम उनसे नहीं कहते लेकिन वो फील करते हैं। मसलन जैसे मैं फिर दोबारा रिपीट करना चाहूंगा, जब आप एक दफा लिखना शुरू कर देंगे, आप उनके फ्यूचर में आप करवा रहे हैं कि आपने फ्यूचर में क्या करना है, आपने अगले 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने, 12 महीने में क्या क्या चीजें डिलीवर करनी है। इससे पहले तो कोई उनसे पूछता ही नहीं था। तो पहली चीज तो वहां पर आना शुरू होगी। फिर जब उसके साथ साथ उनकी रिपोर्ट बन रही होती है कि जी इन्होंने ये चीज अचीव कर ली थी, नहीं की थी, कितने परसेंटेज अचीव की, उसके बाद उसकी रिपोर्ट बन के उस मिनिस्ट्री के साथ, सेक्रेटरी के साथ, प्राइम मिनिस्टर के साथ
सारों के साथ शेयर होती है, तो वहां पे ही अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म एक आना शुरू हो जाता है। दूसरी चीज ये है, जैसे मैंने बताया, पेपर परफॉर्मेंस आएगी इसके अंदर और बेहतर हो जाएगा। तीसरा ACR के साथ लिंक करेंगे, और चौथी चीज ये भी है, इस सिस्टम को और रॉबस्ट जब किया जाएगा, फिर इसके साथ अकाउंटेबिलिटी ज्यादा बेहतर तौर पे आ सकेगी। और एंड टू बी फेयर एंड फ्रैंक, जो कि अगर थर्ड पार्ट एज एन आउटसाइडर अगर देखा जाए, तो आई थिंक इस एक इनिशिएटिव की वजह से ही काफी चीजें बेहतर होना शुरू हो गई हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी है, दासू की एग्जांपल दी है, इसी तरह मैं आपको एविएशन की एग्जांपल दे सकता हूँ, और बाकी मिनिस्टर्स की एग्जांपल दे सकता हूँ, जिसकी वजह से उन्होंने उन चीजों के बारे में सोचना शुरू किया है। उनको पता है ये चीजें अगर होंगी तो फिर क्या होगा, नहीं हो रही तो फिर प्राइम मिनिस्टर पूछेंगे भी, मिनिस्टर्स भी पूछेंगे, मिनिस्टर्स को पूछा जाएगा, और उनको ये भी पता है कि अगर मिनिस्टर्स की आगे पीछे होंगी तो प्राइम मिनिस्टर इस चीज को भी ध्यान में रखते हैं कि हाँ जब शफल करनी है। तो आई थिंक मैं इस तरह आपका ये आंसर करना चाहूंगा। जी नदीम साहब। थैंक यू जी, थैंक यू। Bilal, I would like to add one more thing. महमूद खालिद, sorry. अच्छा साथ, go ahead, apologies. Abhiya, this initiative is establishment division is the custodian of it. Establishment manages your HR. आपकी पास पहले क्या चीज है अभी? I'll ask you, क्या आप अपनी HR को evaluate करें? फ्लां का, मैं थोड़ा सा कैंडिड होता हूँ, फ्लां का किसी के साथ ताल्लुक है, उसको कोई हिला नहीं सकता। ACR अपनी मर्जी से लिखवा लो, 10 साल बाद लिखवा के ले आओ। टेन्योर प्रोटेक्शंस हैं, जिस तरह आपने कहा है कि चेन ऑफ कमांड्स ब्रोकन है, तो आपके पास क्या बेसलाइन है? जो बिलाल बात कर रहे थे, जो आपकी HR को एवेल्युएट करने के लिए आपके पास बेसलाइन है ही नहीं। अब आप उसको एवेल्युएट किस तरह करते हैं? Yes, I agree with Nadeem साहब, I agree with you. There has to be, how well you conceptualize things is definitely something, is a metric which one should use to evaluate the other person's performance. It's not just about आपने काम किया कि नहीं किया। Second, जो आपकी बात है autonomous bodies वाली, देखें वो, as I said, chain of commands broken है इस मुल्क में। आपकी majority important autonomous bodies cabinet division के नीचे हैं। cabinet division के prime minister हैं। उस autonomous body का जो board है वो prime minister है। prime minister है उस chairman of that board। PTA का जो chairman of that board है वो PM है। ये NDMA हो गए, ये सारे इदारे जो यहाँ बैठते हैं, नया पाकिस्तान हाउसिंग। आपकी yes, there are few ministries जहाँ पे ये issue है, power हो गया, जहाँ पे बहुत बड़े-बड़े इदारे हैं नीचे। लेकिन देखें, आप पावर का एग्रीमेंट देखें, जो आप ऑटोनमस बॉडीज की बात करें, हम मिनिस्ट्री को किस चीज पे अकाउंटेबल ठहरा रहे हैं? हम लोग, वी आस्क देम फॉर वन नंबर, वी सेइंग कि जी आप सर्कुलर डेट को मैनेज करने के लिए आप अपना ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस कितने नीचे लेके आएंगे? वी आर नॉट आस्किंग कि आप फ्लां डिस्को जो है वो कितने अपने डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस कम करेगी, फ्लां को ये कहें, फ्लां को वो कहें। चेन ऑफ कमांड इस टूल से बेहतर होगी। It will take time. We are agreed, we've lost, this is a new beginning, we've lost many beginnings. But again, either you are a dictator or आप डंडा मार के सारा काम कराते हैं। Yeah, you have to be, you subscribe to one or the other form of governance. We can't be dictators. We have to be relatively open, and we have to acknowledge that we always have to define our constraints. Even Nadeem Saab, economics के अंदर भी, given something, you expect something. So it's Pakistan is a different market. It's a different country. So this we thought was the best model, or from what I understood. But your feedback is important, and what you're saying is part of the evaluation process, and that is to follow. But for example, one thing that I could suggest, which could be done, why can't the universities evaluate ministries? Why can't PIDE evaluate ministries? Why can't other universities evaluate ministries? Why should ministries have a free pass that they think they can interfere with everybody? Why don't we have network governance? Why can't we evaluate them? Why can't we present an evaluation to the Prime Minister? I mean, ये जो मुश्किल बात है ना कि ministries are all powerful and they control all SCOs, state-owned enterprises, and they control everything else under the sun. I think that's a fundamental flaw in your framework, because there's no autonomy. I can't imagine Oxford and Cambridge being answerable
to a section officer in a ministry, which is the case here. And I think that's extremely difficult for me to bear. Ji Mahmood Khalid sahab bataiye. Mahmood Khalid Thank sahab. you. Ji sir, thank you very much. It's really nice to hear for the first time government's performance evaluation. Actually, in the past, there was a green book published along with the budget document called as the medium-term budgetary framework, which actually had these numbers along with the costs, but there had never been a kind of an evaluation. My question specific is that still, is there any work in terms of developing the strategic documents which the ministries are going to follow? Because if you ask them, they are just going to put up numbers which may not reflect in terms of the outcomes or goals which we want to achieve. That's my first question. Second is that had there been any costing exercise also done? For example, now there is a Sehat Sahulat program, but we are also giving away lots of public budget in the form of the hospitals and other setups. So do we really calculate that where our public money is making the most value? Lastly, can we put up these performance contracts upfront to the public along with the budgets when the budgets are discussed and approved? Because primarily it's the output which is important, not the financial figures only. So maybe in future we can replace the budgets with these performance contracts, which needs to be debated in the parliament and presented to the people. Thank you. Ji Saad, would you like to answer or should I answer? Yes, thank you. Interesting questions and valid questions. Okay, the Green Book is different. As I said, the performance agreements ki jo custodian hai wo STAB hai. Green Book ka custodian is finance. When you, मैं ये Green Book मैंने मुख्तसर से देखी हुई है. एक तो वो एक बहुत अच्छी चीज है. I think अगर वो सही तरह चल रही होती तो शायद इसकी जरूरत ना पड़ती. Second, जो performance agreements हैं, वो as you know we've said कि उसका जो process है और जो उसका it's more of a facilitation thing. The Green Book is more of a budget building, both backward looking, forward looking, very specific, very macro. This is slightly micro. So I feel कि जो आप बात कर रहे हैं वो you know फिलहाल जो current models हैं they differ a lot. और ग्रीन बुक के बारे में मुझे इतना पता नहीं है. मैंने मुख्तसर से देखा हुआ है. But it's a very वो medium term budgetary framework के लिए it's an amazing thing. And no, the performance agreements cannot replace them. Parliament में जो debate है वो targets पे नहीं हो सकती, वो बड़ी macro level thinking पे होती है. और जो आपकी as you said conceptualize जो आप कहते हो आप you know the way the parliament functions, legislation. And sorry, if you could repeat your second question, जो आपके थे, महमूद साहब. I think इनका second question था कि public money का किस तरह ensure करेंगे कि वो सही जगह पे इस्तेमाल हो रही है और अगर difference कर सकें hospitals का और जी जी. Actually, it was related to the costing exercise. That have you been able to put up a kind of a cost grid across various deliverables and see what could be the alternative models as a performance alternative? जी. So देखिए, as far as resource allocation and how this will be used to कि वो public money maximum bang for the buck जो है, this is something जो performance evaluation के अंदर ये वो चीज है जो आप finance और planning के साथ बैठ के करेंगे. ये वो चीज है जब आप कहेंगे कि जी मुझे पैसे दें तो वो पूछेंगे जी आपने पैसे क्यों आपको चाहिए. जब ये वो सब कुछ कर लेंगे, देखिए performance agreements बनते हैं. ये जो बात है ये आप बात कर रहे हैं जो इसके अंदर embedded है कि अगर मेरा एक क्वार्टर है और मेरा एक टारगेट है कि जी मैंने ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट बनाना है, मैंने इसका PC1 बनाना है, मैंने इस PC1 को फ्लां अथॉरिटी से अप्रूव कराना है, फ्लां से ये करना है, फ्लां से वो करना है,
तो ये जो आप बात कर रहे हैं, ये जो पेयर रिव्यू कमेटी है वो उसको ये चीज पूछनी चाहिए। लेकिन क्योंकि ये तो सिर्फ एक कमेटी है ना जी, जो पूछ रही है कि आपने ये चीज की है कि नहीं की है, लेकिन जो उसकी एक्चुअल कॉस्टिंग है, जो उसका एक्चुअल इम्पैक्ट है, और जो उसकी एक्चुअल समझो ऑप्टिमाइजेशन है रिसोर्सेज की, आप किस तरह यूज कर रहे हैं, वो तो काम प्लानिंग का ही है। तो यस, ये प्लानिंग का हिस्सा होना चाहिए। अच्छा, इसके अंदर 2-3 चीजें महमूद साहब की बड़ी अच्छी इंपॉर्टेंट थी कि जी सेहत सहूलत कार्ड में भी हम पैसे दे रहे हैं और साथ साथ हम उसमें भी पैसे दे रहे हैं हॉस्पिटल्स को। तो फॉर एग्जांपल जब हमने हेल्थ का बना रहे थे तो वी आस्क्ड देम कि जरा इसका थर्ड पार्टी ऑडिट तो करवाएं, जरा पता तो चले कि इसकी क्या चीज, इज इट वर्किंग और नॉट वर्किंग, कोई थोड़ा सर्वे करवाएं, थोड़ा पता करवाएं कैसे चल रहा है, हॉस्पिटल्स कौन से हैं, क्या हैं, क्या इसकी एफिकेसी, क्या इसको आगे चलना चाहिए प्राइम मिनिस्टर को बताने के लिए। तो इस तरह की चीजें, और ये तमाम चीजें जो थी ये हेल्थ मिनिस्ट्री के साथ पीआरसी रिव्यू ने, जिसके अंदर तमाम सेक्रेटरीज बैठे हैं, उन्होंने डिस्कस की। तो वो एक फोरम है जहां पर ये सारी चीजें डिस्कस होती हैं एक तरीके से। और उसके अंदर सिमिलरली जैसे आप कह रहे हैं कि कॉस्ट टू कॉस्ट एनालिसिस तो नहीं, लेकिन मैं देख सकता हूँ कि सेहत सहूलत कार्ड की जब वो रिपोर्ट लेकर आएंगे, देन वी वुड नो कि क्या हम उधर पैसे आगे जाके एक्सपैंड करना चाहिए और बेहतर करना चाहिए और मे बी हॉस्पिटल्स को कम करना चाहिए। बट दीज आर क्वेश्चन जो स्ट्रेटेजिक क्वेश्चन है, विदाउट जब तक उसके ऊपर एक थर्ड पार्टी ऑडिट और 1-2-3 ऑडिट्स हो जाएं जिसके अंदर परफॉर्मेंस ऑडिट्स भी हो, दूसरी ऑडिट्स भी हो, फिर ज्यादा बेहतर हो सकता है, रादर देन कि जस्ट वन यार्ड स्टिक के मुताबिक इसके ऊपर स्लैब करके हम करें कि जी ये इस तरह हो जाना चाहिए। तो एक तो चीज ये है। दूसरा आपका ग्रीन बुक के ऊपर था, एक ग्रीन बुक का जो है वो फाइनेंस की है, जैसे साथ पहले बता चुके हैं काफी चीजें, और वो सिर्फ आउटपुट के ऊपर फोकस थी। ये जो परफॉर्मेंस एग्रीमेंट है, इट्स अ बिगर थिंग कंपेयर टू दैट थिंग, क्योंकि यहाँ पर एक्टिविटीज भी हैं, साथ साथ पीएसडीपी के प्रोजेक्ट भी हैं, पॉलिसीज भी हैं, इनको सिर्फ कॉस्ट के साथ नहीं रिलेट किया जा रहा, इनको सर्विस डिलीवरी के साथ भी रिलेट किया जा रहा है, इनको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के साथ भी रिलेट किया जा रहा है, इनको अपनी उनकी वर्किंग बेहतर करने के लिए भी रिलेट किया जा रहा है, इनके प्रोजेक्ट्स जो हैं उनके साथ भी रिलेट किया जा रहा है। तो उस तरह ये जो है ये ग्रीन बुक से थोड़ी सी डिफरेंट है, बट इन फ्यूचर वी सी कि किस तरह दोनों कन्वर्ज होंगी, ग्रीन बुक और परफॉर्मेंस एग्रीमेंट के नेक्स्ट राउंड्स में और अगले राउंड्स में। ग्रीन बुक की काफी चीजें जब वो हर साल निकालते हैं तो वो कंपैरेटिवली परफॉर्मेंस एग्रीमेंट के साथ मर्ज होना शुरू हो जाए और वो फिर चीजें आना शुरू हो जाएं। और इसी तरह जो आपकी बड़ा अच्छा सजेशन है, क्योंकि हमारी इस सारी डिस्कशन का मकसद ही है कि हम किस तरह इन चीजों को इम्प्रूव कर सकते हैं, पब्लिक तक लेकर आ सकते हैं, क्या चीजें हम लोग कर रहे हैं और किस तरह इम्प्रूव कर सकते हैं और फीडबैक से। तो ये आपकी बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि मे बी दिस बिकम्स द पार्लियामेंट, बट मे बी इट कैन बिकम, मे बी इट नॉट। वो डिपेंड करेगा किस तरह हम इसको लेकर चलते हैं, कितनी ज्यादा इसकी अहमियत सिटीजन की तरफ से डिमांड आती है, कितनी ज्यादा चीजें होती हैं, प्राइम मिनिस्टर की तरफ से क्या आती हैं। तो मे बी इन फ्यूचर इट विल आइट्रेट इटसेल्फ, ये बेहतर होता रहेगा आप लोगों के फीडबैक से, इसमें चीजें इंप्रूव होती रहेंगी, इसमें लोगों का इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा, लोग चाहेंगे कि जी ये बार बार पब्लिश हो। जब नेक्स्ट गवर्नमेंट आएंगे तब भी वो लोग यही चीजें मांगेंगे जी कि जी उन्होंने परफॉर्मेंस एग्रीमेंट पब्लिक किए थे, आप लोग क्या कर रहे हैं, आप भी पब्लिक करें, बताएं हमें आप अगले साल के लिए क्या करना चाह रहे हैं। तो मे बी ये आहिस्ता आहिस्ता इवॉल्व करके ये चीजें बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। लेकिन ऑल वेरी रेलिवेंट एंड इम्पोर्टेंट पॉइंट, और मेरे ख्याल में ये साथ साथ चीजें होना शुरू हो जाएंगी। जी नदीम साहब। जी मेरे ख्याल में नदीम साहब इधर नहीं है। अच्छा, नदीम साहब का एक और कमेंट था यूनिवर्सिटी। जी 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 खुर्रम इलाही साहब बोलिए। खुर्रम इलाही साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, बिलाल साहब, साथ साथ शुक्रिया। पहली बात कि नदीम साहब ने बहुत अच्छी बात की, मैं वहीं से शुरू करूंगा कि एक यूनिट प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में बैठ के वो 41 ब्लड लाइंस को जो कि 73-74 सालों में बनी है, उनके ऊपर इतनी टेक्निकल कैसे एक्यूरेसी हासिल कर सकता है। उसकी नाइविटी का अंदाजा हमें इसी बात से हुआ कि आपने बताया कि एक बहुत बड़ी फोर्स ANF, तो ANF पाकिस्तान की सबसे छोटी फोर्स, 2900 लोग हैं, 1.5 लाख पाकिस्तानी पे एक बंदा है, ड्राइवर इंक्लूड और कुक्स डाल के। क्या नारकोटिक्स मिनिस्ट्री ने आपको CBD के ऊपर पॉलिसी बनाने पे एग्री किया है, जो कि बहुत बड़ा सवाल है? क्या उन्होंने हेम्प पे किया है, जहां पाकिस्तान एग्रीकल्चर भी उनको पुश कर रहा है कि आप हेम्प के ऊपर जाएं और पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर साबित होगा, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि चाइना हमसे शेयर करना चाह रहा है और हमारी जमीन बहुत मौजूद है।
दूसरी बात मैं दोबारा वही पूछना चाहूंगा कि कोई भी क्या परफॉर्मेंस कॉन्ट्रैक्ट में आपकी कॉन्वर्सेशन किसी सेक्रेटरी से होती है जो 3 दिन पहले पेट्रोलियम में था, फिर वो बगैर पढ़े, वो पढ़ते नहीं है, इसमें कोई फैक्ट भी नहीं है, मैं रिकॉर्ड पे हूँ, पढ़ता तो हमारे यहाँ कोई भी नहीं है, तो वो फिर आगे एग्रीकल्चर में, तो उन्होंने फिर आपके साथ बैठ के वहां पे कॉन्ट्रैक्ट बनाया और जर्म प्लाज्म जैसी चीजें जिनको मैं अटर भी सही नहीं कर सकता, वो उन्होंने आपको दे दी। लास्टली बस मैं जल्दी से पूछना चाहूंगा, आप कैसे एक्यूरेट ये देखते हैं कि ये फॉरवर्ड लुकिंग है? हो सकता है जैसे ऑल प्रेजेस टू यू, आप लोग बहुत अच्छा हमें जवाब दे रहे हैं, हमें सेटिस्फाई कर रहे हैं, जैसे कि आप और मैं ज़राअत ना जानते तो वो पुरानी जो पॉलिसी चीजें उठा के आपके और मेरे आगे रख दें और कहें जी इंशाल्लाह फ्यूचर में हम ये करेंगे, और आपको मुझे चार्म भी दें, आपके मेरे लिए बड़े बज हम कहेंगे वाह जी वाह की गल की थी। हाउ डू यू सी, जो कि साद भाई ने बड़ा प्यारा वर्ड बोला, फॉरवर्ड लुक, हाउ डू यू सी फॉरवर्ड लुकिंग इज एक्चुअली हेडिंग टू द एज ऑफ एलन मस्क? So forward looking is a very immediate thing, and now we're challenging 2-3 सालों बाद वैसी कायनात बहुत चेंज हो जानी, तो how do you verify that also? Thank you sir. Thank you, thank you, very good questions. I think देखिए, to answer your question, first one, ANF वाला, ANF जो नारकोटिक्स मिनिस्ट्री है वो बिल्कुल छोटी सी है, 8-10 लोग हैं, राइट, और उन्होंने नीचे जो जिस तरह आपने कहा है कि वो 4000 के लगभग की फोर्स को मैनेज कर रहे हैं, या वो उनकी एक रिपोर्टिंग लाइन है, चेन ऑफ कमांड है, उनसे ये चीज आगे ANF से करवाना वाज वेरी डिफिकल्ट, बट यस ये हमने चीज दिलवाई है। देखिए CBD नहीं है, बट यस हेम्प कल्टीवेशन जो है वो नारकोटिक्स कंट्रोल ने पूरी करनी है, उन्होंने इसके स्टैंडर्ड्स बनाने हैं, दिस इज पार्ट ऑफ द परफॉर्मेंस एग्रीमेंट। there are 5 ministries involved in this process. There is food, there is petroleum, there is ये जो आपका DRAP है, health, it's a big thing. All of this is part of the performance agreement. इसके standards भी is part of the performance agreement. So yes, this is something जो पहले नहीं था, जो उन push किया गया, उनको डलवाया गया। Second जो आपकी चीज थी on this अपना जो आपने NFSR की भी बात की थी, देखिए nobody, as I said, कि ये टेक्निकली ये जो डॉक्यूमेंट है ये सब कुछ कैप्चर नहीं कर सकता, इस डॉक्यूमेंट का मकसद ही नहीं है सब कुछ कैप्चर करना। इस डॉक्यूमेंट का, इस प्रोसेस का जो मकसद है इज टू इम्प्रूव द प्रोसेस थ्रू विच प्लानिंग इज डन, थ्रू विच डिलीवरी bottlenecks are overcome, through which ministries can start, जो फ्ला आज बैठा है कल वहां चला गया है, जब वो नया बंदा आता है ना, एस्टा कोड के अंदर जो एस्टैब्लिशमेंट का कोड है, उसमें जब एक सेक्रेटरी दूसरे सेक्रेटरी को रिप्लेस करता है, तो जो नया सेक्रेटरी आता है वो अपने प्लान्स लेके आता है, उसको कुछ नहीं पता होता कि पिछले वाले का क्या है। कम से कम हम ये नहीं कह रहे कि ये 100% एक बेहतरीन चीज बन गई है और वो टेक्निकली हर चीज को सॉल्व कर रहा है, लेकिन ये चीज साथ लगी हुई होगी। कम से कम अगले सेक्रेटरी को ये पता होगा कि पहले क्या किस चीज से फैसले करके गए हैं। देखिए जो सेक्रेटरी है वो कभी टेक्निकल बंदा था ही नहीं, सेक्रेटरी तो एक जनरलिस्ट है। सेक्रेटरी का काम है कि वो मिनिस्टर के साथ, अब देखें, ही इज द सेक्रेटरी ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट for a particular division. He's not secretary for climate change. That's the way our government is structured. So this solves for it. It doesn't solve for everything, but it solves for it. आपकी जो the last thing that you had mentioned was the forward-looking part. For me, forward-looking as a citizen of Pakistan, देखिए मैं bureaucrat नहीं हूँ, मैं कोई पॉलिसी का विज़किड नहीं हूँ, आई हैव लिव्ड इन पाकिस्तान एज अ नॉर्मल सिटीजन, मुझे नहीं पता होता कि आगे क्या हो रहा है, क्या करने जा रहे हैं। एक मोटी मोटी 4 चीजें चल रही होती थी कि जी बिजली का क्राइसिस हल करना है, सड़क बनानी है, रोटी कपड़ा सस्ता करना है। कम से कम अब मिनिस्ट्रीज को एक एक्सरसाइज तो दी गई है ना कि where they have to look forward. So that's one what I said, कि they have to understand कि जी आपने अगले 2 साल में क्या करना है, बताएं, what do you want to do। उससे और काम जनरेट होगा, जैसे नदीम साहब कह रहे हैं, वो कंसेप्चुअल थिंकिंग उन पे इन्फोर्स होगी। टू फॉरवर्ड लुकिंग की जो मैं बात कर रहा था कि there is
जब आप जिस तरह नदीम साहब इसमें सिनिसिज्म है, जो लोग कहते हैं कि जी पाकिस्तान में दिस थिंग हैज गॉटन वेस्टेड, दैट थिंग हैज गॉटन वेस्टेड। जब भी हम कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है, हम कहते हैं जब तक ऊपर टॉप वाला बंदा नहीं होगा, वो इस चीज को पीछे बैक नहीं करेगा, तो ये चीज आगे चलनी नहीं है। तो वो क्यों नहीं आगे चलनी? क्योंकि ऑब्वियसली वो चीज एक मिनिस्ट्री ने तो नहीं करनी ना, वो 50 मिनिस्ट्रियों ने इकट्ठे बैठे करनी है। जब वो मिनिस्ट्रीज ने इकट्ठे बैठे करनी है, तो अगर ये परफॉर्मेंस एग्रीमेंट उसके स्टेप्स को रिकॉर्ड करता है, उसकी डिपेंडेंसीज पकड़ता है कि अगर बिलफर्ज आपने खुद कोई चीज करानी है और आप खुद एक मिनिस्ट्री हैं और आपने एक प्रोजेक्ट थ्रू करा, लेकिन आपको पता है कि प्लानिंग इसको अपोज करेगा या फाइनेंस इसको अपोज करेगा, कोई XYZ मिनिस्ट्री इसको अपोज करेगी, आपके पास एक पर्टिकुलर टूल है जहाँ पे जो कम से कम ये बॉटलनेक प्रिडिक्ट कर सकता है कि जी X मिनिस्ट्री इज नॉट लेटिंग मी डू दिस। So there is some predictive element to it also. So it helps us predict thoda sa bottlenecks. I gave this example before where a ministry was looking for a NOC and they couldn't get it. And I'm so sure that there was something in the other ministry. वो कह तो रहे थे कि 5 साल का होगा, but I'm sure there lots of things, right? So we're not looking at those things, but we're trying to get that thing out of the way and get things done. But I hope this answers your question. जी अच्छा, इसके अंदर थोड़ा सा मैं ऐड करना चाहूंगा साथ के पॉइंट्स पे। अच्छा, एक तो आपका था कि सेक्रेटरी पेट्रोलियम वो अगले दिन 2-3 दिन के बाद सेक्रेटरी वो बन जाएंगे। असल में इसी को रिजॉल्व करने के लिए परफॉर्मेंस एग्रीमेंट्स आए हैं। जब एक दफा जैसे इस साल बन गए, मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, वाटर मिनिस्ट्री के अंदर हमने एक दफा उनके साथ बना लिया और उसके अंदर ये भी इंश्योर किया हमने कि एक तो ऐसा नहीं है कि साथ जिस मिनिस्ट्री के साथ काम करें उसको पता ही नहीं है, साथ उनके साथ पहले काम किया हो या उसका नॉलेज होगा उसके अंदर, इस वजह से साथ उस चीज के अंदर काम करें। जब मैं जिसके साथ काम कर रहा हूँ एजुकेशन के साथ या वाटर के साथ या FDR के, तो मेरा थोड़ा सा बैकग्राउंड है उनके साथ काम करने का या पब्लिक सेक्टर के अंदर, तो फिर हम काम करें जिस वजह से हमें पता है कि उसके अंदर क्या इनिशिएटिव्स हो चुके हैं क्या नहीं हुए। लेकिन साथ साथ हम लोग एक्सपर्ट्स भी साथ रखते हैं जो कि हमें फीडबैक देते रहते हैं और इसके अंदर अगर यूनिवर्सिटीज करना चाहें तो दे आर वेलकम एज वेल। तो जो दूसरी जो आपको मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि जब हमने उनके साथ वाटर के साथ एक दफा परफॉर्मेंस एग्रीमेंट बना लिया 1 साल का, तो दरमियान में सेक्रेटरी चेंज हो गए, लेकिन उससे पहले एजेंडा था कि जी डैम्स पे किस तरह काम क्या होगा, वापडा को रिफॉर्म करने के लिए क्या चीजें होंगी, इरसा को रिफॉर्म करने के लिए क्या चीजें होंगी, वाटर गेजिंग करने के लिए क्या हम लोग इनिशिएटिव लेकर आ रहे हैं, नेशनल वाटर पॉलिसी के क्या कमेटी की मीटिंग कब होंगी और उसके इंडिकेटर्स क्या होंगे, ये तमाम की तमाम चीजें परफॉर्मेंस एग्रीमेंट कैप्चर कर रहे थे। जब वो नया सेक्रेटरी आए भी जो कि जर्नलिस्ट थे, उन्हें नहीं पता था कि ये क्या चीजें होंगी, लेकिन उनके सामने एजेंडा पहले से था, जो कि इस एग्रीमेंट से पहले मसला ही ये होता था कि विम्स के ऊपर चीजें चल रही होती थी। नया सेक्रेटरी आता था, उसको पसंद था कि मैंने वापडा के ऊपर काम करना है तो वापडा के ऊपर काम शुरू कर देता था, जबकि पीछे से चलता ये आ रहा था कि हमने डैम्स के ऊपर काम करना है फॉर एग्जाम्पल, तो वो डैम्स का काम पीछे रह जाता था। वो कहता था जी डैम्स तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने तो ये चीज करनी है। तो एक्चुअली जो आपका क्वेश्चन है ना कि जी सेक्रेटरी चेंज होते रहते हैं, जर्नलिस्ट हैं, सारी चीजें हैं, वो ये परफॉर्मेंस एग्रीमेंट सॉल्व कर रही है, रिजॉल्व कर रही है। उसके अंदर ऑफकोर्स चीजें बेहतर होती जाएंगी, इसके अंदर ज्यादा एजेंडा आइटम्स आते जाएंगे। अभी एक दो हम एक्सपर्ट्स को हर चीज के अंदर डाल रहे हैं, मे बी इसके अंदर ज्यादा एक्सपर्ट्स आते जाएं, जब PRC रिव्यू हो रहे होते हैं मे बी तब लोग ज्यादा आए। इसी तरह यूनिवर्सिटीज की तरफ से लोग पार्टिसिपेट करें इसके अंदर, तो वो चीजें होती रहेंगी। इसके बाद आपका एक और क्वेश्चन जो बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा अच्छा था कि जी आप कैसे इंश्योर करेंगे कि कोई मिनिस्ट्री ने पहले काम कर लिया हुआ है और वो फिर वही बार बार आपको देखती जा रही है। इसके अंदर वही जो पहली बात जो आपसे कह चुका हूँ, एक्सपर्ट्स होते हैं साथ साथ हमारे। दूसरा, एक जो टेबल के क्रॉस एक तो 4-5 सेक्रेटरीज होते हैं, डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन भी होते हैं जिनका एक्सपीरियंस है। ऐसे नहीं है कि वो कल किसी प्राइवेट सेक्टर में बैठे हुए थे और आज एकदम आ गए और उन्हें गवर्नमेंट का पता ही नहीं है कि जी ये क्या हो रहा है, तो उन्हें पता होता है कि क्या हो रहा है। और दूसरी चीज, ये गवर्नमेंट के लिए भी बड़ा मुश्किल होता है कोई कि मैं सेक्रेटरी हूँ प्लानिंग का या मैं सेक्रेटरी हूँ NHA का और मैं कहूँ कि जी मोटरवे जो पहले बन चुकी हुई है मैं उसको बड़े आराम से कहता हूँ कि जी अभी हमने इसका ये चीजें टेंडर वेंडर करें, तो काफी चीजें पब्लिक डोमेन में भी होती हैं। और फिर तीसरी चीज इसके साथ साथ एक और चीज भी है, वो ये है कि हम इसके आगे जो इस साल करने जा रहे हैं परफॉर्मेंस ऑडिट भी करने जा रहे हैं। एक तो हम खुद भी ऑडिट करते हैं, जब आती हैं चीजें, पहले जब बन रही होती हैं तब भी ऑडिट करते हैं, एक्सपर्ट से भी लेते हैं, टेबल पे भी आते हैं, लेकिन उसके साथ साथ अब एक पूरी टीम भी हम बनाने जा रहे हैं जिसके अंदर वो स्पेसिफिक मिनिस्ट्रीज को रेंडमली सिलेक्ट करके परफॉर्मेंस ऑडिट भी करेंगी। और उसके अंदर नदीमुल हक साहब की बात ठीक है, उसके अंदर वो अगर पाइड हमें हेल्प करना चाहे दे आर वेलकम, अपना पूरा प्रपोजल लेकर आए, उसको एंड टू एंड हमारे साथ लेकर चलें
मैंने पहले भी पाइट के साथ कहा था, नदीम उल हक साहब के साथ, जहां पर काम करना चाहें वी आर हैप्पी टू वर्क विद देम। इट्स जस्ट कि वो पूरा प्लान लेकर आए, हमारे साथ बैठे, जहां पर उन्होंने उनके स्टूडेंट्स ने या बाकियों ने करना है काम वो करें। जस्ट मेक श्योर कि वो काम हम एंड टू एंड कर सकें ताकि वो हम प्राइम मिनिस्टर को या कहीं और डिफरेंट प्लेटफॉर्म दिखा सकें। जी नदीम साहब। जी देखिए, लेट मी करेक्ट वन थिंग, आई डोंट say that PIDE wants to do it. I don't think universities want to do it. I think, quite frankly, I believe in network governance. I think we've got too centralized a power base where the secretaries are kings and they have destroyed the power sector. They have destroyed the state-owned enterprises, and we don't want to recognize. We want to close our eyes like ostriches because you think they're too powerful a block to take on. But quite frankly, tell me who's responsible for railways? Who's responsible? So he's not PIDE, not the universities. Who is responsible? Who is the principal accounting officer? Are we ever going to hold the principal accounting officer to account, or are we always going to treat him like a child? He has to be mollycoddled. So please don't think that we need to present a proposal. No, we don't. We're quite happy doing what we are doing because we know that whatever we say will fall on deaf ears because the secretaries are too powerful. But if you want to build network governance, my request to you is please tell everybody there should be network governance. There should be checks and balances. Universities should be checking the ministries, not the ministries. It shouldn't be a one-way story. If it's a one-way story, that's how we get the losses that we've got. जी अभी बीबी आप कुछ और कह रही थी? अभी Okay. मेरे ख्याल में शायद रज़ाक साहब का शायद रज़ाक साहब बोलिए, शायद रज़ाक साहब go ahead. Okay, shall I ask or shall I wait for Mr. Razak? It's okay. जी go ahead Abhiya Bibi, ask quickly. Acha, I quickly want to add जी I quickly want to add one thing. एक तो जो हमारी year books की मिनिस्ट्री की जो इतने साल से चलती आ रही है, उनमें हमेशा से जो yearly report होती है every organization working in the ministry. There's a lot of feedback. आपका question जी. समझ नहीं आ रहा. We can't hear you very well. Abhiya Bibi बोलिए again. Okay. Sorry, so I just wanted to add that yearbooks, ministry yearbooks आती रही हैं पिछले बहुत सारे सालों से, and in every yearbook, all the organizations working under ministries basically explain their goals for the next year and also tell how they have like achieved their goals. So how these performance agreements are different from those yearbook goals. And more specifically, Dr. Nadeem, I was just thinking you're talking about network governance. I think this is very excellent concept, but do you think it will ever work out for a country like Pakistan, which is really, really hierarchical? So I just want to hear something on it. Bilal sir, go ahead. जी अच्छा सर, जो मेरा आपसे आंसर भी था आपसे, मेरा ये नहीं था कि परफॉर्मेंस एग्रीमेंट यूनिवर्सिटीज करें। हमारा जो मेरी सजेशन थी, जो आपकी सजेशन थी कि अगर यूनिवर्सिटीज कोलैबोरेट करें प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के साथ और रिफॉर्म टीम के साथ कि किस तरह इसको इम्प्रूव किया जा सकता है, तो उसमें हम कह रहे थे कि हम बिल्कुल ओपन हैं, कोई सजेशंस आ रही हैं, कोई चीज करना मेरी चाहते गुजारिश हैं, ये मेरी कहीं पे गुजारिश ऑडिट है करना चाहते हैं। बिलाल साहब, लेट मी से, यूनिवर्सिटी तो बेचारी बैठी हुई हैं फर्श के भी नीचे, बेसमेंट से भी नीचे बैठी हुई हैं। उनको अगर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस इनवाइट करेगा तो शायद वो जागे। प्राइम मिनिस्टर और ऑफिस तो यूनिवर्सिटी से, मतलब हम तो कहते हैं ना यूनिवर्सिटीज अर्थ पे हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस मार्स में है। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस तो हमारे नजदीक भी नहीं है भाई, हम तो बहुत दूर बैठे हैं। और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को तो डोनर्स एक्सेस कर सकते हैं, हम तो एक्सेस नहीं कर सकते। मैं तो खुल के कहता हूँ, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस तो डोनर्स एक्सेस करते हैं, हम नहीं कर सकते। जी बोलिए। जी सर, इस पे हम फिर दोबारा आपसे कह रहा हूँ कि हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि इसको इम्प्रूव करें और सिर्फ डोनर्स को ना एक्सेस मिले, यूनिवर्सिटीज को भी मिले, ताकि यूनिवर्सिटीज से अच्छी रिसर्च, क्योंकि जब हम भी यूनिवर्सिटीज में थे, मास्टर्स कर रहे थे, पहले कर रहे थे, और हमने बाहर की यूनिवर्सिटीज में यही देखा है कि आपकी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ आप मिलके को-ऑप और दूसरे प्रोजेक्ट्स वगैरह कर रहे होते हैं, वैल्यूएशन कर रहे होते हैं, आप उनके साथ मिलके काम कर रहे होते हैं। दैट्स हाउ एक तो यूनिवर्सिटीज का भी एक्सपीरियंस बेहतर हो जाता है, स्टूडेंट्स का बेहतर हो जाता है, और साथ साथ जो इदारे हैं उनको भी मिल जाता है कि उनके एक नई थिंकिंग आ जाती है स्टूडेंट्स की तरफ से। और दूसरा जो अभिया का सवाल था, ईयर बुक के पास, ईयर बुक्स भी हमने देखी हैं, और हमारा वही, जैसे मैं आपसे पहले कह रहा था, ग्रीन बुक ईयर बुक्स हमारा यही है कि इनको मर्ज करके एक ईयरली एनुअल एक
रिपोर्ट जो बननी चाहिए कि परफॉर्मेंस और उसके अंदर ईयर बुक और ग्रीन बुक की सारी चीजें आ जानी चाहिए। वो डिस्कशन भी काफी जगहों पर हुई है, पीआरसी रिव्यू के अंदर भी हुई है, डिफरेंट सेक्रेटरीज हम लोगों की भी हुई है, और आगे प्लानिंग यही है कि ये ईयर बुक और ग्रीन बुक और ये इनको मर्ज करके एक ही डॉक्यूमेंट तकरीबन बनाया जाए, ताकि अवाम के लिए आसानी हो कि जी ये क्या चीजें कर रहे हैं और क्या मिनिस्ट्री की परफॉर्मेंस। जी Thank you. साहब, Last आपको ऐड question, करना Shahid चाहते हैं? Razak sir. अभी बेसिकली ईयर बुक साल के एंड में बनती है, परफॉर्मेंस एग्रीमेंट साल के स्टार्ट में बनता है। पहला फर्क ये है। दूसरा ये है कि परफॉर्मेंस एग्रीमेंट पूरे साल में इस्तेमाल होता है कि ये पहले क्वार्टर में क्या चीज की गई है, सेकंड क्वार्टर में क्या चीज की गई है। तो ईयर बुक तो साल के एंड में है। रज़ाक साहब, लास्ट अच्छा, क्वेश्चन। एक चीज मैं और ऐड करना चाहूंगा। देखिए जी, ये जो है ना डॉक्यूमेंट, दिस डॉक्यूमेंट इज, ये प्राइम मिनिस्टर साहब का एजेंडा है। प्राइम मिनिस्टर जिस मीटिंग में बैठते हैं, फॉर एग्जांपल वो बैठते हैं कैबिनेट, वो एविएशन की, तो वो एविएशन का खोलते हैं और उनको पता चल जाता है अच्छा यार ये चीजें मैंने कही थी, ये चीजें हो रही हैं नहीं हो रही, वो उनसे पूछ सकते हैं। इसी तरह और भी चीजों के अंदर हमारा मकसद एक तो ये भी था कि ये डॉक्यूमेंट एजेंडा हो प्राइम मिनिस्टर के लिए, दूसरा साथ साथ ये एजेंडा है पब्लिक के लिए भी। इसके अंदर जैसे आपने चीजें बता रहे हैं, इसके अंदर इम्प्रूवमेंट आती रही, जो चीजें ठीक होती रही। जी शाहिद साहब, आपका क्वेश्चन। मेरा एक सवाल है, जो भी जितनी बातें हुई हैं इसमें तो नजर जाता है कि एक प्राइम मिनिस्टर हाउस का मिनिस्ट्रीज और इंस्टीट्यूशंस के साथ एक परफॉर्मेंस एग्रीमेंट होगा। अच्छी बात है, होना चाहिए, टारगेट सेट हो उसके मुताबिक काम। लेकिन जो मेन इशू है कि काम इंस्टीट्यूशंस ने और मिनिस्ट्री ने लेना किससे है, अपने लोगों से लेना है। वो वहां पे आपका वही पुराना जो एस्टेब्लिशमेंट यूनियन का एक कॉन्सेप्ट है एसीआर का, जो एक एसीआर एनुअली लिख दी जाती है, उसमें कैसे जैसे चाहे इन्फ्लुएंस किया जा सकता है। क्या ये इसके ऊपर कोई वर्किंग हो रही है आपकी तरफ के क्या इंस्टीट्यूशन अपने एम्प्लॉयज के साथ एक परफॉर्मेंस एग्रीमेंट करें जिसकी बेसिस पे एनुअली उनको इवैल्यूएट किया जाए और फिर खोता घोड़ा बराबर ना किया जाए उसमें? बिल्कुल। जी शायद साहब, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं जरा जल्दी से थोड़ा सा इसके ऊपर बताना चाहूंगा। इसके ऊपर हमारा कॉन्सेप्ट यही था कि अभी हमने सिर्फ मिनिस्ट्रीज के साथ बना लिया, जिसके अंदर मिनिस्ट्रीज ने अपने ऑटोनोमस के साथ भी बना रही हैं और कुछ मिनिस्ट्रीज के अंदर अपने एम्प्लॉयज के साथ बना रही हैं। लेकिन इन फ्यूचर, इसके अगले साल हमारा यही है कि परफॉर्मेंस एवेल्युएशन रिपोर्ट्स, जिसके अंदर इस मॉडल को कैस्केड किया जाए तमाम मिनिस्ट्री के अंदर। फॉर एग्जाम्पल सेक्रेटरी का वही परफॉर्मेंस एग्रीमेंट हो अपने एएसएस के साथ, जितने भी एएस हैं, एएस का जेएस के साथ, जेएस का नीचे डीएस और एसओ का, और उसके अंदर उनके अपने काम भी हों कि वो रिफॉर्म से रिलेटेड इसके साथ लिंक हों कि वो उनका क्या काम होगा, इसके अंदर आउटकम से रिलेटेड उनका क्या काम होगा। और एसीआर को भी हमारा यही प्लान है, जिसके अंदर इशरत साहब की कमेटी और अरबाब साहब और सीसीआईआर और बाकी उनकी यही था कि आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर एसीआर विल बी रिप्लेस्ड बाय परफॉर्मेंस एग्रीमेंट। उसके अंदर फॉरवर्ड लुकिंग होगा, क्योंकि एसीआर अगर हम देखें तो वो ऐसे होता है बैकवर्ड, यानी कि साल कंप्लीट हो जाता है, फिर उसके अंदर लिखा जाता है कि जी हमने ये चीज की, ये चीज की, ये चीज की। उसके अंदर बहुत ज्यादा सब्जेक्टिविटी आ जाती है। तो हमारा यही है कि आगे की तरफ हम मिनिस्ट्रीज के अंदर कैस्केड करें। उसके अंदर काफी चीजें हम लेकर आना चाह रहे हैं कि एक तो फॉरवर्ड लुकिंग करें। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपने बॉस के साथ बैठ के बताऊं कि जी मैंने अगले साल ये चीजें करनी है। उसके बाद उसका रिव्यू भी हो और वो बेहतर तरीके से, और रिव्यू के बाद उसको फीडबैक भी मिले हर 3 महीने के बाद, जी कि आपने ये चीजें ठीक की हैं, ये चीजें नहीं ठीक की। और बाद में प्रमोशन, इंसेंटिव, बोनसेस, जितनी भी चीजें हैं वो इसके साथ लिंक हो। लेकिन ये पहले दिन नहीं हो सकता। अभी ये मिनिस्ट्रीज के साथ हो गया है, अब हमारा आगे प्लान यही है कि कैस्केड करें विद इन मिनिस्ट्रीज। और इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि अगले 1-2 साल के अंदर इसको हम पुश करके मिनिस्ट्रीज के अंदर ले जाएं, ताकि वो जो एसीआर का जो पुराना सिस्टम है वो इस पे रिप्लेस हो जाए। उसमें भी काफी इश्यूज आएंगे हमें, वो हमें अंदाजा है। उसके अंदर रेजिस्टेंस भी आएगी क्योंकि इनर्शिया बहुत ज्यादा है, जैसे साथ पहले बता चुके होंगे। विद इन गवर्नमेंट सेक्रेटरीज, ब्यूरोक्रेसी, जो नदीमुल हक साहब बातें कर रहे हैं वो ठीक है, उसी पॉलिटिकल सेटअप के अंदर हमें रह के काम करना है और मेक श्योर करना है कि चेंज और रिफॉर्म्स आते रहें, सर्विस डिलीवरी बेहतर होती रहे, लोगों के लिए आसानियां आती जाएं और चीजें बेहतर होती जाएं। और जो पुराने सिस्टम्स हैं एसीआर के, वो चेंज हों, उसकी जगह पीईआर लें और फॉरवर्ड लुकिंग हो, उसके साथ साथ रिव्यूज हों, उन लोगों के ऑब्जेक्टिव रिव्यूज हों, और साथ साथ उसको फीडबैक भी मिले। फॉर एग्जाम्पल, मैंने गवर्नमेंट में नहीं कहीं देखा कि कोई जेएस अपने डीएस या एएस या सेक्रेटरी एएस के साथ बैठे और कहे कि ये
तुमने 3-4 चीजें मेरे ख्याल में ठीक नहीं की, या ये चीजें ठीक की हैं, और मे बी तुम्हें अपनी कम्युनिकेशन के ऊपर काम करना चाहिए, या मे बी तुम्हें अपनी, अगर हम कहें कि जी नोट फाइल जो तुम बना के पुटअप करते हो वो नहीं ठीक करते, तो इस तरह की तो कॉन्वर्सेशन ही हम लोग नहीं कर रहे। हम तो बहुत ही पुराने सिस्टम पे बैठे हुए हैं। ये हम चीजें करना चाहते हैं, और उसके अंदर मेरे ख्याल में ये आहिस्ता आहिस्ता ही होंगी ये चीजें। जी साद, आप कुछ ऐड करना चाहें? बस मैंने just wanted to add, शाहिद साहब, basically that's the reason why ये establishment division में based है उनका main, that's why it's part of establishment division. ACRs is something that is totally not what's going to help you evaluate performance, let alone performance. I mean, it's not, it should be thrown away. वो ACR तो जैसे साथ बता रहे हैं थ्रोन अवे, ऐसे भी हमने तो देखते हैं कि कुछ सेक्रेटरी के पास आ रहे हैं 5 साल पुराने, 6 साल पहले उन्होंने काम किया हुआ था, उनकी प्रमोशन बोर्ड आ गया कहीं पे, वो भागे भागे आ रहे हैं, उनको नाम भी नहीं याद कि अच्छा इसने मेरे साथ 6 साल पहले काम किया था, वो कह देते हैं, वो लिख देते हैं। तो दिस सिस्टम नीड्स टू चेंज, जो जैसे साथ कह रहे हैं, और एस्टेब्लिशमेंट वाली, और इट विल चेंज, आहिस्ता आहिस्ता चेंज होगा। जब लोग नए आएंगे, नई चीजें लेकर आएंगे, नए कॉन्सेप्ट्स लेकर आएंगे, प्राइवेट सेक्टर से लोग आएंगे, तो ये चीजें चेंज होंगी। जी नदीम, थैंक यू वेरी मच साद, थैंक यू वेरी मच। क्या कहते हैं बिलाल, थैंक यू वेरी मच, वंडरफुल वेबिनार, वी लर्नड अ लॉट, except that I'm sorry you guys, young people from McKinsey, have fallen prey to the glacial pace of change. तो पता नहीं, ये मेरी जिंदगी 70 साल तो गुजर गए चेंज की ड्रीम करते करते, और मैं मर रहा हूँ इस ड्रीम के बगैर। मेरा ख्याल है मेरे बच्चे भी, आप लोग भी माशाल्लाह, मतलब इतनी स्लोली चेंज करेंगे कि हमें पता ही नहीं चलेगा। और मैं देख रहा हूँ एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन का भी जो है आपका परफॉर्मेंस एग्रीमेंट, उसमें कहीं भी इशरत साहब की रिपोर्ट का या कोई जिक्र नहीं है। और ये कहते ना फॉर्मुलेट रोटेशन पॉलिसी, फॉर्मुलेट डेपुटेशन पॉलिसी, मतलब डेपुटेशन होता क्या है? ये 1900 मतलब 2021 में why do we have deputation? Why do we formulate these policies? Now, who's going to formulate this policy? Are you telling me these guys are going to formulate this policy without consultation with anybody, and that's a performance goal? I really think that we need to talk about this a lot more. I think it's an important step. I agree. Yes. I wish it happens, but quite frankly, please guys, step up the pace of change. We waited far too long. We need to get rid of Lord Macaulay. Lord Macaulay is still in our head. And I think, I don't know why nobody wants to change Lord Macaulay. Long live Lord Macaulay. Long live Lord Macaulay. Thank you very much. Good to see you. Inshallah, we'll continue the dialogue. Khuda Hafiz. Thank you. Thank you.